कैमरा मलय सर टिके आपन कैमरा आपन ऑन करिवे sir. Okay. So good morning friends. So today we have Mr. Malay Patra. You have already known that what we are going to actually see today. But before going into that, I would like to just introduce Mr. Malay Patra. So you might be knowing that a lot of people actually stay in a lot of beautiful locations, but hardly they appreciate the beauty and the location where they live in. Mr. Malay actually lives in Koraput, which many of you must be knowing that it's the untouched beauty of Odisha. It's the most beautiful district of Odisha, and it has the big spreading lush green valleys. It has deep forest. It has mountains. It has a lot of reservoirs, and the kind of flora and fauna which Koraput possesses, probably none of the other districts in Odisha may be having. And living in that place, he has been always influenced by this beauty of Koraput, not only the scenic beauty, but the love and affection, the simplicity of the people living there, the different hill tribes, the kind of community which lives over there, the difficulties faced by these communities, and within those difficulties, the kind of beauty it inherits. So those are the things which actually inspired him to get into photography. So he does a lot of different kind of photography, including nature, landscapes, people, life, different community, tribal life. One of his very known artwork is his passion for astrophotography. And today he is going to prima facie talk about astrophotography only. And then if we get time, then he would also we would also request him to show some of his other works as well. In astrophotography, he will mostly go through what are the things which need to be considered while looking at while planning for an astrophotography, the planning stage, the kind of gear which we should use, then what are the kind of softwares or the post-processing requirement, and what are the other tips which one should actually consider while going for an astrophotography. So join me to welcome Mr. Malay Patra. Thank you for giving his time today and sharing his rich experience in this field. I once again welcome Mr. Malay. Biranchi bhai, if you want to add something, would be good. Thank you, Satyajit. सत्यजित तो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन मलय पात्र को दले विथ नेचर जहाँ भी मुझे जानी ची मलय पात्र मैन ऑफ जयपुर से बहुत माने नेचर भारी से नेचर इंस्पायर्ड पर्सन हम भी तंकर काम बहुत बढ़िया मैं देखी चु रिसेंटली कोटे काम ता ओटीवी रे भी आस्तिला माने स्टार में जो हमरो ये कुनी एस्ट्रो फोटोग्राफी कुनी के आस्तिला अदर भी मु समटाइम्स भी तांक काम देखे बहुत बढ़िया काम आज तांक काम आमे समस्त मिसकी देखिबा पुनी भलो भाबरे मलय पात्र कोन मलय पात्र को भी जानिबा तो वेलकम मलय पात्र Thank you Biranji Bhai. Thank you Satyajit Bhai for the nice introduction of me, and good morning everyone, and thank you all for being here for this astrophotography discussion session. I will not take much to introduce myself again, but rather I will go for astrophotography, and I would like to Satyajit Bhai to allow me to share my screen. Sure, sir. Sure. It's enabled. Try now. Enable, sir. परेश सर नहीं है सर. नमस्कार सर. Requesting everyone to kindly mute their mics for the time being. Whenever you want to speak, you can actually unmute yourself. हिंदी रे करिबा. Okay. So this is my screen.
आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरा? जी मलय सर, देख पा रहे हैं। Okay, okay. Then we are getting started. Sure. Okay. Good morning, all of you. This is a Very good session morning. about astrophotography. Here, I will share my views and my tricks and techniques and all the knowledge how I go about astrophotography. Okay. Astrophotography is not astrophotography खाली फोटोग्राफी नहीं होता है। इसमें हम लोग जो नेचर है उसको भी फील करते हैं, कुछ टाइम सोलेस में गुजारते हैं और इसमें कुछ गेन भी हम लोग करते हैं। और जब वो जो साइट है, जो सोलफुल साइट है, उसको जब हम अपना कैमरा में क्लिक करते हैं और सेव करते हैं एक मोमेंट को, वो ऑलवेज रिवार्डिंग होता है। तो वो इस जर्नी में मैं तो बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ यहाँ पे कोरापुट में। इसका जो वैल्यूज है ये है, ये बहुत ही सुटेबल है और इसमें मैं बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ। और उस वो जो टाइम स्पेंड करके मैं कुछ गेन किया हूँ नॉलेज अबाउट एस्ट्रो फोटोग्राफी, जो उसका न्यूसेंस है गेन किया हूँ, वो मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एस्ट्रो फोटोग्राफी किट के बारे में। हेलो एवरीवन, कैन लिसन मी ना? हाँ जी सर। Yes, we can listen. Okay. Anyone if having any question can pause me anytime. Okay. So first हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जब एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए जाएंगे तो अपना किट बैग में क्या क्या चीजें होना चाहिए, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें ऑप्शनल है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग है कैमरा। कैमरा में क्या है कि कोई भी डीएसएलआर इसमें काम करेगा विथ मैनुअल सेटिंग, और बस कैमरा बॉडी में एक चीज देखना है हमें कि ये कुछ डिसेंट आईएसओ हैंडलिंग कर सकता हो। लाइक if your camera is able to handle ISO like 800 and above, so it is fine for astrophotography. So कैमरा हम कोई भी एंट्री लेवल स्टार्टिंग डीएसएलआर ले सकते हैं। इवन कुछ प्रो समर कैमरा जो पॉइंट एंड शूट कैमरास है, उसमें भी जहाँ पे मैनुअल सेटिंग दिया गया है उसमें भी कर सकते हैं। इवन आजकल मोबाइल फोन में भी एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग है हमारा चॉइसेस ऑफ लेंस। लेंस हम क्या चूज करेंगे, किस टाइप का लेंस एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए ठीक रहेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा एस्ट्रो फोटोग्राफी किस टाइप का कर रहे हैं, हम लोग डीप स्काई कर रहे हैं या वाइड फील्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है। बट एक चीज ओवर द बोर्ड इक्वल रहेगा, वो चीज है हमारा अपर्चर। जो जितना फास्ट लेंस होगा, वाइड अपर्चर लेंस होगा, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सुटेबल रहेगा। और सेकेंड थिंग है, जिस लेंसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहेंगे, लाइक हमारा ब्लॉक लेंसेस, प्राइम लेंसेस, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहेगा। तो हम कोई भी लेंस ले सकते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, बट जो बेस्ट सुटेबल लेंसेस हो सकता है वो वाइड अपर्चर लेंसेस एंड प्राइम लेंसेस बेस्ट रिजल्ट लाके देता है। अच्छा, लेंसेस के बारे में तो ये हो गया। सेकेंड थिंग जो बहुत जरूरी है और कोई भी एक एस्ट्रो फोटोग्राफी किट का इंटीग्रल पार्ट, लेंसेस के बारे में क्लियर था या कट गया था? नहीं, क्लियर था सर। आप बोल रहे थे विथ रिगार्ड टू द प्राइम लेंस जिसमें कम ट्राइपॉड के बारे में। हाँ, प्राइम लेंसेस जिसमें कम एलिमेंट हो वो अच्छा है, और वाइड अपर्चर लेंसेस मोस्टली एस्ट्रो के लिए अच्छा रहता है। और लेंसेस की बात, लेंस तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आप अगर वाइड में लेना चाहते हैं, वाइड फील्ड करना चाहते हैं, तो वाइडर लेंस में वाइड प्राइम लेंस लेंगे। या टेली में जैसे डीप स्काई ऑब्जेक्ट है, प्लानेटरी फोटोग्राफी है या कॉन्स्टेलेशन है, उसके लिए आप जूम लेंस यूज कर सकते हैं या टेली प्राइम यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेंसेस के बाद हम बात करते हैं ट्राइपॉड्स की। ट्राइपॉड्स इसमें बहुत ही इंटीग्रल है और क्रूशियल है इसका रोल। तो आपको हमेशा एक स्टडी ट्राइपॉड सिलेक्ट करना है,
लाइक उस दिन जैसे प्रदीप सर ने बोले थे ट्राइपॉड के बारे में, बहुत सारा ब्रांडेड ब्रांड्स एंड ये, तो मैं समझता हूँ आप ट्राइपॉड के बारे में सबको अच्छा आइडिया है और एक अच्छा ट्राइपॉड लेना है। मैं तब बोलूंगा ट्राइपॉड में आपको हेड सिलेक्शन जो है, ट्राइपॉड हेड, वो बॉल हेड अच्छा रहता है एस्ट्रो के लिए, या आपको जो 3 एक्सेस मूवमेंट जिसमें रहता है पैन हेड, वो भी अच्छा रहेगा। ओके, ट्राइपॉड की बात जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी होता है मोस्टली नाइट टाइम में होता है, तो आप जहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक चीज की जरूरत पड़ सकता है, एक हेड लैम्प की जरूरत पड़ सकता है, जो हम लोग नॉर्मली कैंप में यूज करते हैं हेड लैम्प, उसमें वाइट बीम रहता है कलर, और वो आईज के लिए डिस्ट्रैक्टिंग होता है। जब हम लोग एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं डार्कनेस में, हमें कुछ टाइम लग जाता है हमारा आंखों को डार्कनेस के साथ एकस्टम होने में। तो जब हम लोग 15-20 मिनट बाद डार्कनेस के साथ एकस्टम होते हैं, हमारा आंख एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग लाइट बीम हमारा आंख में पड़ता है तो फिर से वो रीएडजस्टमेंट में चले जाता है और हमें जो फीवल डिम स्टार है वो दिखाई नहीं देते हैं। सो उस टाइम पे आपको इस टाइप का एक रेड बीम वाला हेडलाइट यूज करना है। इसमें क्या है, आपका जो ये कैमरा है, सेटिंग्स है और जो चीजें हैं, वो सब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, यूजेबल रहता है, नाइट टाइम में कन्वीनियंट है, आपको स्ट्रेस नहीं होता है, और आप किसी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इसमें। ओके, देन हम लोग चलते हैं आपकी किट की दूसरे चीजों के बारे में। जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी होता है, एस्ट्रो फोटोग्राफी में मोस्टली हम लोग का जो एक्सपोजर होता है वो लॉन्ग एक्सपोजर होता है। मींस इसमें आपका शटर एक ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ओपन रहता है, और ये आपका शेक के लिए मतलब हो जाता है। ये आप में सभी जाएगा, हाथ से आप शटर प्रेस कर रहे हैं या कोई भी मूवमेंट होता है कैमरा बॉडी में, तो ये उसमें मोशन ब्लर शेक क्रिएट कर देता है, आपका फोटो इतना शार्प नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल ये है कि आप आपका कैमरा को रिमोटली एक्चुएट करें, या उसको उसका जो सेल्फ टाइमर दिया हुआ है उसको आप यूज करें। सो आपको जनरली इसमें एक डिवाइस यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं केबल रिलीज। वो इस टाइप का होता है, ये आपका कैमरा में जाता है और ये उसका ट्रिगर है, इसको आप हाथ से रिलीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको रिमोट आईआर रिमोट रहता है, या आप आपकी फोन से कैमरा को कनेक्ट करके वाईफाई में भी उसको शटर रिलीज कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। या आप आपकी कैमरा में जो सेकंड टाइमर हुआ है, सेल्फ टाइमर, उसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो आपकी किट में होना चाहिए, एक छोटा सा पीस है, छोटा सा पीस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ आर्टिकल है, बट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक कैप में दिखाया हूँ नीचे, ये है व्यू फाइंडर ब्लॉकिंग कैप। ये जो लोग डीएसएलआर यूज कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, जो मिररलेस यूज कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो डीएसएलआर यूज कर रहे हैं पेंटाप्रिज्म टाइप, उसमें क्या होता है, आपका व्यू फाइंडर से लाइट एंटर कर जाता है कैमरा बॉडी के अंदर, और वो आपके सेंसर तक चले जाता है। उससे आपका जो लॉन्ग एक्सपोजर है वो उसमें लाइट पिल्फरेज होता है, फ्लेयर्स आ जाता है और बेंडिंग प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ड्यूरिंग द एक्सपोजर आपको आपका व्यू फाइंडर को ब्लॉक करके रखना है, लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया हूँ। तो ये कैप आप साथ में कैरी कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है इसको आपका जो कैमरा का स्ट्रैप है उसमें आप दीजिए, तो ये रहेगा आपके साथ हमेशा, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और लास्टली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप एक लेंथ फ्री क्लॉथ कैरी करें। समर में डस्ट होता है और विंटर में आपका लेंस कंडेंस कर जाता है, इसके ऊपर फॉग कंडेंसेशन होता है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब आप फोटोग्राफी करते हैं
कम हो जाता है, तो बीच बीच में आपको लेंस क्लीन करते रहना है। ओके, सेकेंड थिंग, हम चलेंगे कैमरा से बाहर, जो थर्ड मतलब दूसरे टाइप की आर्टिकल है, वो है आपका स्टार मैप। ये स्टार मैप पहले हुआ था, बट अभी आप मोबाइल से जीपीएस सबसे हैंडी जो चीज है वो यूज करेंगे। वो है एक एप्लीकेशन जिसमें जिसके मदद से, जिसके थ्रू आप मतलब स्काई में कोई भी स्टार, कॉन्स्टलेशन, मिल्की वे, प्लैनेट, ये सब को आप रियल टाइम में फाइंड कर सकते हैं। मींस जब तक आप एस्ट्रोनॉमी में और स्टार के साथ एक्वेंटेड नहीं है, तब तक आप आपका टारगेट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसमें दूसरा फायदा ये होगा कि आप जो जियोलॉजिकल पोजीशन है, उस पोजीशन में आप आपका सनराइज टाइम एंड सनसेट टाइम एंड मूनराइज टाइम, ये जो क्रुशियल एस्ट्रोनॉमिकल मतलब फेनोमेना है, ये सब आप के थ्रू जान सकते हैं। इसमें मैं दो आप रिकमेंड करूंगा। मैं स्टार वॉक को यूज कर रहा हूँ, स्टेलेरियम और एक जो भी बहुत ही अच्छा है। दोनों आपको जिसका यूजर इंटरफेस अच्छा लगता है यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। और कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस या आईओएस में इसको एप्पल में लोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फ्रीवेयर है अभी। और स्टेलेरियम जो है कम्प्लीटली फ्री है। स्टार वॉक 2 जो है, इसका प्रो वर्जन के लिए कुछ नॉमिनल अमाउंट है। और जैसे आप डेस्कटॉप में बैठ के देखना चाहते हैं स्टार मैप, स्टार वो देखना चाहते हैं, तो आप स्टेलेरियम का डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आता है, उसको बैठ के आप ब्राउज कर सकते हैं। स्टेलारियम ऐप रो डेस्कटॉप वर्जन कथा कहते हाँ, स्टेलेरियम ऐप टा जोटा अच्छी, स्टेलेरियम ऐप जो है, ये इसका डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है। आप आपके घर में बैठ के आपके स्काई को ब्राउज कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स की आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग आप कौन से स्टार कहाँ पे कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में स्काई में पाएंगे, सब आप घर में बैठ के रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं स्टेलेरियम डेस्कटॉप ऐप से। बट आपका जो मोबाइल ऐप है वो बहुत ही हैंडी है। इसमें आप रियल टाइम में स्टार को ट्रैक कर सकते हैं। अगर जैसे आप नया है, बाहर गए हैं आउट कहीं पे एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए, वहां पे आपको मिल्की वे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, या कोई कॉन्स्टलेशन या कोई प्लैनेट कहाँ पे है, तो आपको ये जो मोबाइल ऐप है ये रियल टाइम में ट्रैकिंग करके पोजीशन बता सकता है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा आप बिफोर गोइंग टू वेंचर इनटू एस्ट्रो फोटोग्राफी कोई भी ट्रिप में, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है, जो जरूरी है आपको समझना एस्ट्रो फोटोग्राफी के टूर प्लानिंग करने के लिए। ओके, एवरीवन कैन हियर मी ना? राइट सुन पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं। ओके ओके ओके। मून फेज जो है, मून फेज क्रुशियल रहता है कि क्योंकि मून फेज आपका स्काई ब्राइटनेस को, स्काई में जो लाइट होता है, एम्बियंस होता है, उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। तो मून फेज को आपको जानना जरूरी है। और कभी भी आप एस्ट्रो फोटोग्राफी प्लान कर रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए, तो मून फेज को कंसिडर करें। और कौन सी मून फेज कौन सी टाइप की फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहता है, वो भी हमें जानना जरूरी है। सो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें 4 फेजेस होता है, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड थर्ड क्वार्टर। ये जो 4 फेजेस होते हैं, ईच वन अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का होता है, और ये पूरा फेज 1 मंथ। बेसिक एस्ट्रोनॉमी, ये मून फेज को जो है
लोग मून फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इसीलिए जरूरी है, आप कोई भी प्लान करेंगे, टूर करेंगे फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, और आपको करेक्ट स्काई नहीं मिलेगा तो आपका टूर पूरा मतलब मजा नहीं आएगा। इसीलिए आप मून फेज को समझ लीजिए। ये मून फेज जो है आपका 1 मंथ का होता है, पूरा मून फेज अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का होता है, जिसमें 4 फेजेस रहता है। न्यू मून फेज है, फर्स्ट क्वार्टर मून है, फुल मून है एंड थर्ड क्वार्टर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू मून से। न्यू मून मतलब नो मून। ये फेज में आपका मून लाइट नहीं रहता है, मतलब जो हम अमावस्या बोलते हैं वो फेज है ये। इसमें आपका कोई मून नहीं रहता है, और ये दिस ग्रेट फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी। तो ये फेज में आप एस्ट्रो फोटोग्राफी का कोई भी टाइप का कर सकते हैं, जैसे मिल्की वे फोटोग्राफी हो गया, स्टार ट्रेल हो गया, या प्लानिटरी फोटोग्राफी हो गया, या आपका जो डीप स्काई फोटोग्राफी है, कोई भी फोटोग्राफिक स्टाइल एस्ट्रो फोटोग्राफी के में है, वो न्यू मून फेज में अच्छा है। और इसके बाद क्या होता है कि मून धीरे धीरे क्रिसेंट मून की तरफ बढ़ता है। इसमें ये वैक्सिंग फेज है, इसमें धीरे धीरे मून दिखाई देने लगता है। और जो फर्स्ट वीक के बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर मून। ये जो फेज है, ये फेज में मून अर्ली आपका होराइजन में आता है रात को, और कुछ लाइट आपका आ जाता है स्काई में। सो ये फेज है एस्ट्रो फोटोग्राफी वाइज। दूसरे टाइप का जैसे स्टार ट्रेल फोटोग्राफी है, उसके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका स्टार के साथ साथ इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा इल्यूमिनेशन आ जाता है। इल्यूमिनेशन में तो आपका कंपोजिशन बढ़िया बनता है, स्टार के साथ साथ बाकी एनवायरमेंट भी थोड़ा दिखाई देता है। तो ये फेज आपका स्टार ट्रेल के लिए अच्छा है। इसके बाद जो दो न्यू मून फेज के बारे में मैं बोल चुका था, क्लियर था सत्यजीत भाई? हाँ जी, न्यू मून आपने बोल दिया था, अच्छा फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, न्यू मून के बाद न्यू मून फेज में तो पूरा डार्कनेस रहता है स्काई में, जो कि सारे फोटोग्राफी के लिए, सारे टाइप के एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। और उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर मून आता है। फर्स्ट क्वार्टर मून में आपका मून थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, और ये फुल मून की तरफ बढ़ता है। तो ये फेज सबसे अच्छा है स्टार ट्रेल के लिए, क्योंकि स्टार के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट का भी इल्यूमिनेशन होता है। जैसे आपका माउंटेन रेंजेस हो गया, पहाड़ हो गया, या कोई भी आपका फोरग्राउंड में कोई भी सब्जेक्ट जो आप प्लेस करना चाहते हैं, उस पर भी थोड़ा थोड़ा लाइट आएगा मून लाइट का। तो ये कंपोजिशन वाइज बढ़िया बनेगा, और आप उसको स्टार ट्रेल के लिए ये फेज को आप चूज कर सकते हैं। ये फेज में भी मिल्की वे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मून राइज का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है फुल मून। फुल मून जो है, इस टाइम पे लाइट पूरा बढ़ जाता है स्काई में। ये टाइम पे आपका स्टार फोटोग्राफी हो सकता है, जब तक आपका मून, अगर मून सेट हो जाता है या मून राइज से पहले, ये 2 टाइम में कर सकते हैं। बट ये टाइम मतलब फुल मून टाइम में कंसिडर नहीं किया जाता है फोटोग्राफी अगर आपको करना है। तो ये इस फेज में आप मून फोटोग्राफी कर सकते हैं जरूर। मून का भी बहुत ही अच्छा एस्ट्रो फोटोग्राफी हो सकता है। मून एसडीआर होता है, क्रिसेंट मून कर सकते हैं, मून का अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी, वो हम डिस्कशन करेंगे। और जो थर्ड क्वार्टर मून है, वो लाइक आपका फर्स्ट क्वार्टर मून है, एज इट इज है, सेम है। तो थर्ड क्वार्टर मून भी एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सुटेबल अगेन हो जाता है, स्टार मिल्की वे के लिए, कोई भी टाइप का एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए। बट आपका जो न्यू मून है, नो मून फेज है, अमावस्या का फेज है, वो बेस्ट रहता है स्टार फोटोग्राफी के लिए। ओके, सेकेंड थिंग, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में जो अपना फेनोमेना है उसके तरफ। इसमें एक चीज है जो कि अर्थ का रोटेशन, ये अपना फोटोग्राफी को पूरा इन्फ्लुएंस करता है। इसको, ये बेसिक एस्ट्रोनॉमी में समझना थोड़ा सा जरूरी है। ये है कि जो अपना सेलेस्टियल पोल है, दो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसके अराउंड क्या अपना अर्थ घूमता रहता है, इसका रोटेशन होता है। इसका जो रोटेशन है 24 आवर में 1 रोटेशन होता है, ये इस स्पीड में रोटेट करता है। सो अपना जो स्टार्स है, ये भी नेचुरली
रोटेट करेंगे, क्योंकि हम लोग रोटेट करते हैं तो ये लोग रोटेट करता हुआ दिखेगा। और इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है वो होता है आपका नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में एक स्टार होता है जिसको बोलते हैं पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। ये आपका फिक्स्ड रहता है अराउंड द स्टार, मतलब स्काई। स्काई में नॉर्थ पोल में नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, ये फिक्स रहता है। बाकी उसके अराउंड सारे स्टार्स रोटेट करते रहते हैं। तो आपको बेसिकली स्काई में नॉर्थ पोल में पोल स्टार को फाइंड करना रहता है। इसको फाइंड करेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्स्टलेशन स्काई के बारे में, बाकी इसको रेफरेंस लेके आप बाकी कॉन्स्टलेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्टार ट्रेल भी अगर करना चाहते हैं, आप स्टार ट्रेल करते हैं तो आपका नॉर्थ पोल में नॉर्थ स्टार फिक्स रहेगा, उसके अराउंड सारे स्टार्स आपका घूमते हुए नजर आएगा। तो वो एक अच्छा कंपोजिशन बन सकता है। इसीलिए आप आपका जो ऐप है, जो आप मैंने बताया आपको, स्टेलेरियम हो गया या स्टार वॉक 2 हो गया, उसमें से आप नॉर्थ पोल में पोल स्टार को फाइंड कर लीजिएगा और उसको स्काई में एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रखिएगा। उसमें से आपको बहुत सारे कॉन्स्टलेशन, जैसे आपका उर्सा मेजर जिसको सप्तर्षि मंडल कहते हैं, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, बाकी कैशोपिया, ओरायन, ये सब आपको उस पॉइंट से मिलने लगेगा। सो स्क्रीन में आपको दिखाया हूँ, ये ऊपर जो 7 स्टार्स दिख रहे हैं ये आपका उर्सा मेजर है, सप्तर्षि मंडल है। और इसका लास्ट जो 2 स्टार्स है इसको ज्वाइन करके सीधा नीचे आएंगे तो आपको पोल स्टार मिलेगा, जो कि आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है स्काई में। इसके अराउंड बाकी सारे कॉस्मिक मूवमेंट आपका होता है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरा चीज है जो कि आपको फोटोग्राफी को इन्फ्लुएंस करेगा और ये नेचुरल नहीं है, वो है आपका लाइट पोल्यूशन। ये स्क्रीन पे मैं उड़ीसा का एक लाइट पोल्यूशन मैप में दिखाया हूँ। ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लाइट पोल्यूशन मैप डॉट इन्फो करके एक वेबसाइट है और दूसरे भी वेबसाइट से, ये वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें से आप जिस एरिया को जा रहे हैं फोटोग्राफी करने के लिए, एस्ट्रो फोटोग्राफी, वो एरिया को इसमें से रिफर कर सकते हैं। इसमें देखिए भुवनेश्वर कटक जो है रेड कलर में आ रहा है, ये पूरा पोल्यूटेड एरिया है, लाइट पोल्यूटेड एरिया है। उसके बाद येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। आप जो ब्लू जोन इसमें से देख पा रहे हैं वो वहां से एस्ट्रो फोटोग्राफी पॉसिबल है। और ये जो एरिया डार्क ग्रीन कलर का एरिया जो है ये बहुत ही सुटेबल है, ये 0 लाइट पोल्यूटेड एरिया है। बट आप ब्लू जोन से भी एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर लीजिए प्लेसेस, कौन सी जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कितना लाइट पोल्यूशन है। लाइट पोल्यूशन ज्यादा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी फोटोज में स्काई ग्लो आएगा। मींस आपका पोल्यूटेड लाइट का मैग्नीट्यूड और स्टार लाइट का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बैलेंस नहीं होगा। आपका पोल्यूशन लाइट ज्यादा हो जाएगा स्टार लाइट से और आपका एक्सपोजर स्टार पे नहीं आएगा, ये लाइट पे आ जाएगा। ये लाइट से एक्सपोज हो जाएगा, आपका वॉश आउट हो जाएगा। सो लाइट पोल्यूशन मैप जरूरी है। और ये मैं आपको वेबसाइट यहाँ पे दिया हूँ, lightpollutionmap.info, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका मोबाइल ऐप भी है, आप मोबाइल ऐप से भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी एरिया में कितना लाइट पोल्यूशन है। और तीसरा थिंग है कि आप इसमें डायरेक्शन वाइज लाइट पोल्यूशन, सपोज आप यहाँ पे एक जगह टिकरा पड़ा है, टिकरा पड़ा से आप शूट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से आप साउथ की तरफ शूट करेंगे तो लाइट पोल्यूशन कम है। अगर यहाँ से ईस्ट की तरफ शूट कर रहे हैं तो उसमें स्काई ग्लो आएगा। तो ये आइडिया भी आपको इससे हो जाएगा कि कौन सी स्काई में, कौन सी रीजन में आपको लाइट पोल्यूशन आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मला भाई, हाँ, जो आजकल के जो करंट जनरेशन के नेचुरल लाइट फिल्टर या लाइट पोल्यूशन फिल्टर बोलते हैं जिसको, वो यूज करने से कुछ भी फायदा होता है? कुछ फायदा होता है इससे? लाइट पोल्यूशन फिल्टर यूज करने से फायदा एक्चुअली क्या होता है कि वो एक टाइप का पोलराइजर होता है, डायरेक्शनल लाइट को वो कट करता है।
बट उसमें से आपको, अगर आप एक सिटी के ऊपर है, जैसे वैली में सिटी है और सिटी के ऊपर है आप, मतलब वैली के टॉप में है, उस टाइप के पोजीशन में अगर अगर है आप, क्रॉस लाइटिंग हो रहा है, तो अच्छा। आप उसको यूज करके लाइट को कट कर सकते हैं। ओके। बट अगर आप लाइट पोल्यूशन एरिया में है, चारों तरफ से लाइट है, हाँ, तो वो तो काम फिर नहीं करेगा। वो तो काम नहीं करेगा। तो उस लाइट पोल्यूशन फिल्टर काम कर सकता है, काम करेगा भी, लेकिन डायरेक्शनल लाइट होना चाहिए। जैसे स्टार के लाइट ऊपर से आ रहा है, उसका फोटोन ऊपर से कलेक्ट हो रहा है, और आपका जो पोल्यूटेड लाइट है वो सपोज 30 डिग्री से आ रहा है क्रॉस में से, अच्छा। तो उस टाइप के केस में आप उसको यूज करके कुछ हद तक कम कर सकते हैं। बेसिकली वो एक पोलराइजर ही है, डायरेक्शनल लाइट को कट करता है। ओके, और कुछ मतलब इसके बारे में? ब्लू जोन में यूज करने से थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है मोस्टली। हाँ, ब्लू जोन में मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप टिकरापड़ा में हैं, हाँ, जी। मैप में आप थोड़ा रेफर करिए, टिकरापड़ा हाँ, में है, ठीक है वहां थोड़ा। से आपको ईस्ट की तरफ लाइट पोल्यूशन है, हाँ, तो आप ईस्ट स्काई में शूट कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट स्काई में शूट कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट को, और यहाँ से जो लाइट आ रहा है, क्रॉस लाइटिंग है, इसको आप उसमें नलीफाई कर सकते हैं अच्छा। ओके। लाइट पोल्यूशन फिल्टर से। स्काई का लाइट आपको डायरेक्टली कट होगा, और जो क्रॉस लाइट है उसको आप नलीफाई कर सकते हैं। ओके ओके। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Sir, I have a question. हाँ, प्लीज। यूज करते हैं स्टार एनहांस करने के लिए भी एक फिल्टर आता है, मैंने एक एलन वेलेस का वीडियो देखा था, तो वो कैसे फंक्शन होता है और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं वो लेंस प्राइस वगैरह, और उसका यूजफुलनेस यहाँ पे कितना है? स्टार एनहेंस करने के लिए? हाँ, कुछ स्टार्स का कलर्स और वगैरह अच्छे से दिखने के लिए वो एक फिल्टर यूज करते हैं। नहीं, देखिए, स्टार का जो स्ट्रक्चर है और कलर्स है, हम्म। स्टार का स्ट्रक्चर और कलर जो है, वो लेंस के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। उसमें उसमें कोई फिल्टर का काम नहीं करेगा, कोई भी टाइप का फिल्टर काम नहीं करेगा। आई थिंक वही सर, वही इसी को ही एस्ट्रो फोटोग्राफी में स्टार के लिए कभी कभी लाइट पोल्यूशन फिल्टर को भी स्टार फिल्टर भी बोल के ये कर रहे हैं, मेरे प्रमोट पास कर वो रहे हैं। वीडियो है, मैं ये मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, आप सब देख सकते हैं। ठीक है। ओके, वो शायद आपको टेलीस्कोप में काम में आएगा, आईपीएस में वो लगाने के लिए। लेंस में तो सच नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिए, मैं वो वीडियो पोस्ट कर ओके देता ओके हूँ। ठीक। ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए इवनिंग का कौन सा टाइम ठीक रहेगा इवनिंग में। ओके, जनरली अगर रात को हम लोग कर रहे हैं फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो सनसेट के बाद हमें एस्ट्रोनॉमिकल सनसेट तक वेट करना पड़ेगा। जनरली जब सन होराइजन से नीचे चले जाता है, वो उसको हम लोग सनसेट बोलते हैं। उसके बाद आपका सिविल सनसेट एंड नॉटिकल सनसेट आता है, उसके बाद जाके आपका एस्ट्रोनॉमिकल सनसेट आता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल सनसेट होने में अप्रोक्सीमेटली आपको सन सेट के बाद 40 मिनट से 60 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्काई आपका पूरा डार्क हो जाएगा, और आप एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए अगेन मतलब सुटेबल टाइम आएगा। वैसे सनराइज से पहले भी वही 80 मिनट्स अच्छा रहता है, बिफोर 80 मिनट्स बढ़िया टाइम रहता है। तो ये बिटवीन, इन बिटवीन आप आपका एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जो अर्थ का रोटेशन है, मोशन है, उससे आपको आपकी फोटोग्राफ में क्या प्रॉब्लम आता है और क्या प्रॉब्लम होता है। इसमें देखिए, इसमें जो स्टार इमेज में दिखाए हूँ लेफ्ट साइड में जो है, ये इसमें सेंटर में आपका पोल स्टार है, उसके अराउंड बाकी सब स्टार ट्रेल कर रहे हैं। जब हम एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, एक लॉन्ग एक्सपोजर लेते हैं, अगर आपका एक्सपोजर टाइम अर्थ का रोटेशन टाइम से काफी ज्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है, उस केस में आपको स्टार ट्रेल करता हुआ दिखेगा। जैसे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे
दो इमेजेस में प्लेस किया हूँ। एक ऊपर जो ब्लैक इमेज है उसमें स्टार आपको लंबा होते हुए दिख रहा है, ट्रेल करते हुए दिख रहा है, और नीचे जो एक इमेज है इसमें स्टार पॉइंटेड आ रहा है बिल्कुल। तो अगर हम लोग मिल्की वे ले रहे हैं या कोई स्टार कॉन्स्टलेशन का फोटो ले रहे हैं, अगर इसमें स्टार हमें ट्रेल करता है तो वो फोटो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमें एक एग्जैक्ट एक्सपोजर टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे स्टार का जो ये मोशन है ये फ्रीज हो जाए। तो इसका वर्क अराउंड जो है, इसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन जो इजी सॉल्यूशन है वो ये है कि हम लोग एक्सपोजर टाइम कैलकुलेट करेंगे जो कि अर्थ का जो रोटेशनल टाइम है उससे कम हो, या हम लोग एक गैजेट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं स्टार ट्रैकर। बेसिकली ये एक मोटराइज ट्राइपॉड हेड होता है जो कि अर्थ का रोटेशन के साथ पोलरिस को, जो पोल स्टार है उसको सेंटर में रखते हुए घूमेगा स्टार के साथ। तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्सपोजर टाइम मिल जाता है। एक्सपोजर टाइम क्रुशियल इसीलिए है क्योंकि स्टार जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो भी बॉडीज है या ऑब्जेक्ट्स है, इनका जो लाइट मैग्नीट्यूड है ये बहुत डिम है, और इसमें से जो लाइट आता है, जो फोटॉन्स आते हैं, वो सेंसर में ठीक से कलेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो आपका शॉर्ट एक्सपोजर, लाइक जैसे हम लोग लैंडस्केप में लेते हैं या दूसरे वाइल्ड लाइफ में तो वेरी शॉर्ट एक्सपोजर्स होता है, उतने में ये बिल्कुल कैप्चर नहीं हो पाता है। इसमें जो भी एक्सपोजर्स है मिनिमम मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड से लेके अप टू आवर्स तक चलता है। सो इसमें आपको एक्सपोजर कैलकुलेशन करके एक्सपोज करना है, या दूसरा तरीका ये है कि आपको एक स्टार ट्रैकर यूज करना है। सो इस सेशन में हम स्टार ट्रैकर यूज करके कोई भी फोटोग्राफ कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी समझता हूँ हम लोग कोई स्टार ट्रैकर यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम एक बेसिक एसएलआर से कैसे स्टार फोटोग्राफी कर सकते हैं और स्टार को मैनुअली कैसे ट्रैक कर सकते हैं विद सिंपल सेटअप, वो हम लोग देखेंगे, और उस एंगल से हम लोग आज का फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी सेशन मूव करेंगे, परस्यू करेंगे। ओके, देन आपका जो थर्ड चैलेंज है एस्ट्रो फोटोग्राफी में, वो है आपका नाइट स्काई में फोकसिंग, डार्कनेस में आपको फोकसिंग करना। इसमें आपका ऑटो फोकस इतना इफेक्टिव नहीं होता है, और फोकस हंटिंग होता है, बार बार फोकस काम नहीं करेगा, मतलब ऑटो फोकस आपका काम इतना अच्छे से नहीं करेगा। इसके लिए आपको मैनुअल फोकसिंग ही चूज करना है। अच्छा, जो मैनुअल फोकसिंग मेथड्स है स्टार को करेक्टली फोकस करने के लिए, इसमें 3-4 दूसरे मेथड्स है। उसमें से हम जो पॉपुलर मेथड है और जो इजी मेथड है वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, अगर आपकी लेंस में फोकल लेंथ इंडिकेटर है, जैसे ये मैं स्क्रीन पे दिखाया हूँ, इसमें हमारा फोकल मार्क इंडिकेटर है। इसमें आप कितना फोकल लेंथ पे आपका फोकस है, मतलब सॉरी कितना फोकल डिस्टेंस पे आपका फोकस है, ये इसमें इंडिकेट कर रहा है। इस टाइप का अगर विंडो आपकी लेंस पे है तो बहुत ही इजी हो जाता है फोकसिंग करना। आप जस्ट इन्फिनाइट पे चले जाइए। इन्फिनाइट पे मीन्स आपका फोकस है, मीन्स वो बियॉन्ड स्टार है, आपको थोड़ा सा पीछे आना है, और उसमें आप जस्ट बैकवर्ड पुल करिए, लेंस को इन्फिनाइट पे ले जाइए, बैकवर्ड 1 to 2 mm आप पीछे लाइए। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया हूँ, इसमें रेड कलर का एक मार्कर प्लेस किया हूँ, मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है थोड़ा सा पीछे, और फिर आपको चेक करना होगा, बट अभी ये फोकस शुड बी एट स्टार। अच्छा, सेकेंड टाइप का जो मेथड है, इसमें आप आपका लाइव व्यू विंडो को यूज करेंगे। जो आपका लाइव व्यू विंडो है, आप स्टार मतलब स्काई में कोई भी एक ब्राइट स्टार चूज कर लीजिएगा, चूज करके आप कैमरा पॉइंट करके उस स्टार की तरफ आईएसओ आपका बढ़ा के थोड़ा, जो भी आपका अवेलेबल आईएसओ है 64, 1200
12,800 जो भी हाईएस्ट आईएसओ है उस पे चले जाइए। उसके बाद आप उसको स्टार को डिजिटली जूम करिए, लेंस से नहीं। आपका जो व्यू फाइंडर में जो प्लस बटन है आपका लाइव व्यू को जूम करने के लिए, लाइव उसमें से डिजिटली जूम करिए और आपको स्टार ऐसे दिखाई देगा, स्टार लाइट दिखाई देगा। उसके बाद आप आपका जो फोकसिंग है उसको मैनुअल मोड में ट्रांसफर करके आपका लेंस का जो फोकस सिलेक्टर है, ऑटो फोकस सिलेक्टर है, उसको मैनुअल मोड में ले जाइए, या बॉडी में अगर आपका ऑटो मतलब फोकस सिलेक्टर है तो उसको मैनुअल मोड में ले जाइए। फिर उसके बाद आप मैनुअली उसको फोकस करिएगा। जो आपका कुछ जो लो लाइट एफिशिएंट कैमरा होता है वो ऑटो फोकस भी कर सकता है। आप एक स्टार को ऑटो फोकस करके उसके बाद उसको मैनुअल मोड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो दो मेथड है, ये दो मेथड से हम स्टार को इजीली फोकस कर सकते हैं। बट आपको स्टार को फोकस करने के बाद उसका शार्पनेस चेक करना जरूरी है। फोकसिंग में कुछ डिस्कस करना है और कुछ? हेलो, फोकसिंग में कुछ डाउट है किसी को? नो सर, इट्स नहीं, काफी आपने डिटेल में समझाया। ओके, सेकेंड थिंग है, एक बार फोकस हो जाने के बाद, एक बार फोकस हो जाने के बाद आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपका स्टार फोकस में है? इसके लिए मैं कुछ इंडिकेटिव इमेज आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। अगर आपका स्टार फाइनली फोकस्ड है, मतलब पूरा शार्प फोकस्ड है, तो आपको एक मतलब शार्प डॉट दिखाई देगा। अगर आपका स्टार फोकस में नहीं है तो ऐसे ब्लर दिखाई देंगे, थोड़ा सा उसका एज जो है वो स्पिल करता हुआ दिखेगा और उसमें डिफरेंट कलर्ड लाइट्स जो है वो आएगा। अगर आपका स्टार शार्पली फोकस्ड है तो ये जो ब्लू एंड पर्पल का जो क्रोमेटिक एबरेशन आ रहा है वो एक जगह पे आएगा आपका। मतलब अगर आपका फोकस शॉर्ट है तो आपका ब्लू लाइट आएगा, ब्लू आएगा। अगर आपका इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब फार जा रहा है, तो आपका पर्पल लाइट आएगा। अगर आपका फोकस बिल्कुल शार्प है तो आपका ब्लू एंड पर्पल जो एबरेशन है व्हाइट के साथ मतलब पूरा एक जगह पे आएगा। और सबसे जो गुड इंडिकेटर है वो शार्प आएगा, मतलब आपका एजेस राउंड आएगा, एक स्टार पॉइंट की तरह दिखेगा, स्पिल करते हुए नहीं दिखेगा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा कौन कौन सी टाइप का एस्ट्रोफोटोग्राफी है। सबसे इजीएस्ट और जो स्टार्टिंग के लिए अच्छा है वो दो टाइप के फोटोग्राफी है एस्ट्रो में। एक तो आपका स्टार ट्रेल हो गया, सेकेंड थिंग है मून फोटोग्राफी है। और आपका जो दूसरा फील्ड है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत ही रिवार्डिंग है, वो है आपका वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी। वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी में जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसमें। मिल्की वे आता है, आपको गैलेक्सीज आते हैं और एस्ट्रो लैंडस्केप टाइप भी इसी में आता है। देन आपका आता है डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स। डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में ये जनरली टेली लेंसेज यूज करके लिया जाता है और स्काई का एक स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पे कोई स्टार कॉन्स्टलेशंस है, जहाँ पे कुछ ऑकल्टेशन हो रहा है, मतलब वो, या आपका कोई कॉमेट है, इस टाइप का जो है वो डीप स्काई फोटोग्राफी है। देन आपका प्लानिटरी फोटोग्राफी है। ओके, तो इसमें हम डिटेल में बढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार ट्रेल के ऊपर। स्टार ट्रेल फोटोग्राफी जो है, जो आप हम लोग अभी डिस्कस किए, अर्थ का जो रोटेशन है और अर्थ का रोटेशन के लिए जो सब प्रॉब्लम हो रहा था, हमें स्टार ट्रेलिंग हो रहा है, शार्प नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग बस उसका एक पॉजिटिव यूज करेंगे, उस अर्थ का मोशन को लेके स्टार को ट्रेल करके फोटोग्राफी लेंगे। इसमें देखिए राइट साइड में मैं फोटोग्राफ इसमें डिस्प्ले किया हूँ। इसमें आपका जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर है वहां पे पोल स्टार है और उसके अराउंड स्टार सब फॉल करते हुए दिख रहे हैं।
ये आपका स्टार ट्रेल फोटोग्राफी है। अच्छा, स्टार ट्रेल फोटोग्राफी जो है ये बेसिकली दो टाइप का फोटोग्राफी है, मतलब इसमें दो टाइप का मेथड्स है। एक है आपका सिंगल एक्सपोजर, दूसरा है आपका मल्टीपल एक्सपोजर। अच्छा, सिंगल एक्सपोजर मींस जैसे आपका अर्थ रोटेशन हो रहा है, उसमें आपका एक ही एक्सपोजर कंटिन्यू करेगा, मतलब फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर। ये आपका ब्लॉक मोड में रख के कैमरा को आपका एक्सपोजर कंटिन्यू करेगा। जितना टाइम आप ज्यादा एक्सपोज करेंगे, उतना टाइम आपका स्टार ट्रेल उतना लंबा आएगा। अच्छा, तो इसमें आपको मतलब जो डिसएडवांटेज है ये सिंगल एक्सपोजर मेथड का, वो हम लोग मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो है आपका फर्स्ट जो इसमें डिसएडवांटेज है, वो है आपका नॉइस, जो आपका डिजिटल नॉइस है। सिंगल एक्सपोजर में जब हम एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हम लोग हमारा सेंसर को एक्चुएट करके रखते हैं, वर्किंग में रखते हैं, इस टाइम पे आपका सेंसर गर्म हो जाता है, सरफेस इसका हीट अप होता है, और जिससे आपका नॉइस क्रिएट होता है। और इसमें आपका नॉइस के कारण हॉट पिक्सल्स एंड कलर नॉइस, ये दोनों इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इसमें एक तीसरा जो डिसएडवांटेज है, वो है आपका स्काई ग्लो। ये टाइप का जो सिंगल एक्सपोजर स्टार ट्रेल मेथड है, ये आप बिल्कुल डार्क जोन में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल लाइट पोल्यूशन नहीं है, तो वहां पे आप इजीली अप टू 1 आवर तक सिंगल एक्सपोजर में आप जा सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एक्सपोजर स्टार ट्रेल के बारे में। मल्टीपल एक्सपोजर स्टार ट्रेल में क्या होता है कि आपका पिक्चर अच्छा आता है सिंगल एक्सपोजर से, कि इसमें हम लोग वेरिएबल मतलब मल्टीपल शॉर्ट एक्सपोजर इमेज ले रहे हैं। जो यहाँ पे 20 मिनट का एक एक्सपोजर ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग 20-20 सेकंड का ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा नॉइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और आपका स्काई ग्लो जो है कंट्रोल्ड हो रहा है। बट जो मेजर डिफरेंस है आपका सिंगल एक्सपोजर में एंड मल्टीपल एक्सपोजर में, वो ये है कि सिंगल एक्सपोजर में आपको कोई पोस्ट प्रोसेसिंग में स्टार ट्रेल को मर्ज नहीं करना पड़ रहा है। मल्टीपल एक्सपोजर में क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारे जो एक्सपोजर है उसको स्टैकिंग करके मर्ज करना पड़ेगा। और जब मल्टीपल एक्सपोजर मर्ज कर रहे हैं, एक्सपोजर का इन बिटवीन जो रिलीफ टाइम है, जिस टाइम के लिए कैमरा बंद हो रहा है, शटर बंद हो रहा है, उस टाइम में उसमें ट्रेल में गैप आ जाता है, जिसको फिलअप करना मतलब फोटो में जब स्टैकिंग में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको हैंडल करना पड़ता है डिजिटली। तो ये सब चैलेंजेस है आपका स्टार ट्रेल में। तो फर्स्ट थिंग है, आपको सिंगल एक्सपोजर में जा सकते हैं। सिंगल एक्सपोजर में जब जाएंगे, आपको ये दो चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग है स्काई का ग्लो। सेकंड थिंग है कि आपका कैमरा कितना देर तक एक्सपोजर को हैंडल कर पा रहा है बिना नॉइस में। और अगर आपको मल्टीपल एक्सपोजर में जाना है, तो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए रेडी रहना है। आपका फाइनल इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद ही आएगा। ओके, तो स्टार ट्रेल के लिए आपको मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और किस टाइप से आप इसको अप्रोच करेंगे, किस टाइप से आप इसके लिए जाएंगे। स्टार ट्रेल एक डिसेंट स्टार ट्रेल अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स लेता है। आप एक अच्छा स्टार ट्रेल के लिए आपको लगभग 2 घंटा लगेगा, मतलब 120 मिनट्स 300 मिनट्स के अराउंड एक अच्छा पूरा फुल राउंड ट्रेल मिलेगा। बट एक 20 मिनट्स में आप एक अच्छा स्टार ट्रेल पा सकते हैं। इसके लिए आपका ट्राइपॉड स्टडी होना जरूरी है, क्योंकि 20-30-1 आवर का जो एक्सपोजर रहेगा, ड्यूरिंग एक्सपोजर आपका हवा भी चल सकती है, उसमें आपका कैमरा नहीं हिलना चाहिए कोई भी हालत में। या अगर आप मल्टीपल शॉट्स ले रहे हैं, तो उसमें जो शटर स्लैमिंग होता है, शटर आपका एक्चुएट होता है,
तो उसमें आपका ट्राइपॉड शेक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक स्टडी ट्राइपॉड जरूरी है स्टार ट्रेल के लिए। और एक मैं टिपिकल स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे दे रहा हूँ स्टार ट्रेल के लिए। उसके अराउंड आप वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, मतलब स्काई ग्लो के हिसाब से आपको एनवायरनमेंट में देख के चेंज करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका ISO 400, और अपर्चर जो है 5.6 to 8 रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा एक्सपोजर होने जा रहा है, इसीलिए हम लोग अपर्चर रखेंगे। और आपका जो शटर स्पीड रहेगा वो आप मिनिमम 20 मिनट से लेके 1 आवर 2 आवर तक जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नाइट स्काई। अगर उस साइड में ज्यादा लाइट पोल्यूशन है तो आप 20 मिनट्स तक जा सकते हैं। ओके, तो ये अपना स्टार ट्रेल फोटोग्राफी है। इसमें डाउट है कुछ किसी को स्टार ट्रेल के बारे में कुछ पूछना है? मलय जी, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। ऐसा है कि जो मल्टीपल एक्सपोजर आप बोले उसका गैप कितना होना चाहिए दो एक्सपोजर के बीच में? सर उसका 2 एक्सपोजर के बीच में लेस देन मतलब ए सेकेंड अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके लिए तो इंटरवलोमीटर जरूरी है, इंटरवलोमीटर जरूरी है सर उसके लिए। सर 2 सेकंड का गैप रहने से स्टैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं सर, लेस देन 1 सेकेंड रहना चाहिए आपको। अच्छा, 1 सेकेंड में भी गैप दिखने लगेगा। दिखने लगेगा। हाँ जी। हाँ। हाँ तो फुल राउंड के लिए क्या 1 आवर से ज्यादा चाहिए फुल राउंड के लिए? फुल राउंड के लिए सर आपको अप्रोक्सीमेटली 300 मिनट्स चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा स्क्रीन में देखिए सर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये अर्थ का रोटेशन है, हाँ, इसमें दिख रहा है व्हाइट कलर का जो ग्लोब है, इसमें नॉर्थ पोल के अराउंड स्टार का मूवमेंट स्लो रहता है सर। अच्छा। और साउथ पोल के अराउंड ज्यादा रहता है, मतलब जो सदर्न क्रॉस है साउथ पोल के अराउंड, इसमें स्टार का जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्पीड रहता है। तो इसमें सेलेस्टियल इक्वेटर है। हेलो। अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सेलेस्टियल इक्वेटर जो है इसके अराउंड भी आपको मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट मिलेगा। तो आपका देखिए जो नॉर्थ पोल से जितना दूर जा रहे हैं आपका स्टार्स, उसका जो पाथ है, मतलब जो ट्रेल है, वो ज्यादा बड़ा आएगा, लंबा आएगा। और अच्छा। नॉर्थ पोल में अगर आपको फुल ट्रेल चाहिए तो आपको लगभग 300 मिनट्स चाहिए होगा सर। अच्छा, तो इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ की सबसे बढ़िया ट्रेल मिलता है? आपको सबसे बढ़िया ट्रेल लेने के लिए सर मतलब आप स्पीति कोई भी वैली? लाइट मतलब कम लाइट पोल्यूशन वाला जगह चूज कर सकते हैं। बस आपको चूज ऐसा करना है कि होराइजन जो है ना वो थोड़ा नीचे है, आपको थोड़ा एलिवेटेड एरिया में जाना है, थोड़ा सा नहीं, एलिवेटेड एरिया में वो तो जहाँ से। ठीक है। नहीं, जैसे कि हर कोई बोलता है कि पैंगोंग लेक के साइड में अच्छा मिलता है स्टार ट्रेल, मिल्की वे, या स्पीति वैली में अच्छा मिलता है, तो ये सब। नॉर्थ वो अगर वो लॉजिक में अगर हम लोग जाएंगे सर, तो जितना नॉर्थ की तरफ जाएंगे हमें हाँ। उतना बड़ा राउंड दिखेगा, क्योंकि पोल स्टार जो है वो होराइजन से ऊपर ऊपर आने लगेगा, मतलब अच्छा। होराइजन से थोड़ा ऊपर दिखेगा पोल स्टार। जितना हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, पोल स्टार का जो एंगुलेशन है होराइजन से वो थोड़ा ऊपर आएगा। सो हाँ, तो हॉराइजन का नॉर्थ, ऊपर आएगा तो हमको पूरा राउंड मिल जाएगा तो उसका चारों तरफ, हाँ तो उसका हाफ चारों राउंड तरफ हो जाएगा। मिल जाएगा, पूरा चारों तरफ मिल जाएगा। हम्म, हम लोग जितना करीब होते हुए जाएंगे नॉर्थ पोल का, तो अर्थ से पोल स्टार का एंगुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ऊपर आएगा, और आपको पूरा राउंड मिलने लगेगा। और यहाँ से भी नहीं, पूरा राउंड मिल जाएगा आपको। पोल स्टार उड़ीसा से भी तो पोल स्टार मतलब 20 डिग्री के एंगुलेशन पे मिल रहा है आपको। तो फुल अच्छा। सर्कल तो नहीं मिलेगा, होराइजन से जस्ट ऊपर आपको हाफ सर्कल से ज्यादा आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, नहीं, ज्यादा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो
दूसरा दिक्कत क्या है, और आपका कैमरा ये नहीं होता है, आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे के ऊपर वहां नहीं चलता है, वो ज्यादा ठंड के वजह से वो बंद हो जाता है। फिर वही दिक्कत होता है कि इतना 300 मिनट्स तक आप नहीं ले सकते। सर उसका स्कूल ऑफ थॉट ये है सर कि आपका एटमॉस्फेयर जितना ठंडा होगा, आपका हाँ बोलिए। एटमॉस्फेयर जितना ठंडा होगा, आपको स्टार फोटो उतना अच्छा मिलेगा। उसका लॉजिक ये है कि आपका जो सेंसर टेम्परेचर रहेगा वो कंट्रोल में रहेगा। हाँ लेकिन आपको ज्यादा ठंड होने से क्या होता है ना, ये स्विच ऑफ हो जाता है कैमरा वगैरह, वही दिक्कत होता है, आप, तो इसीलिए। हाँ प्रदीप तो सर, आप आजकल उसको आजकल आजकल एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आ रहा है, रिले कैमरा कॉपलर बोल के। उससे आप डायरेक्ट आपका जो बैटरी है वो बाहर आ जाता है, और आप उसको डायरेक्ट अपना जो, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग कैरी कर रहे हैं आपका जो पावर बैंक, उसके साथ हम लोग सीधा ऐड कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट आपको 9 घंटा 10 घंटा तक भी कंटिन्यूस चल सकता है। रिले आप रिले रिले कैमरा कॉपलर वो सस्ता है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, और किसी भी सर कैमरा के लिए मिल आपको जाता है। एक्चुअली मल्टीपल एक्सपोजर लेना अच्छा रहेगा इसके लिए मेरे ख्याल से। मल्टीपल एक्सपोजर में आपको नॉइज कम मिलेगा और कन्वीनियंट रहता है सर वो, मतलब नहीं, एक सिंगल एक्सपोजर से। नहीं मलय जी, ये यहाँ ज्यादा ये हीट का प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ ज्यादा ठंड का प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोगों का कंपनी का जो कैनन, निकन, सोनी हुआ कि या जो दूसरा फूजी हुआ, वो लोग रशिया के लिए दूसरा बॉडी बनाते हैं, तो इंडिया एंड ये जो साउथ ईस्ट एशिया, इस एशिया के लिए दूसरा बॉडी बनाते हैं। जो रशिया के लिए जो -50 डिग्री हाँ या -20 डिग्री के ऊपर उनका जो एटमॉस्फेयर है, उसके लिए दूसरे किस्म का दूसरा टाइप का बॉडी वो लोग बनाते हैं। तो इसीलिए वो बॉडी हमारा जैसे कि लेह हो गया, पेंगोंग हो गया, काजा हो गया, ऊपर लांगजा हो गया, वो एरिया में वो कैमरा को आप 3 घंटा क्या 6 घंटा ऑन करके रखिए, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा जो नॉर्मल कैमरा अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो 40-45 मिनट या 1 घंटा यूज करो तो वो बीच में बंद ही हो जाता है। फिर उसको आके ला के गर्म करो, अंदर रजाई के अंदर डालो 5-10 मिनट, फिर जाके वो ऑन होता है, नहीं तो ऑन ही नहीं होगा वो। सर आई फेस दिस उसके प्रॉब्लम। उसके लिए एक सॉल्यूशन आता है सर, उसके लिए एक सॉल्यूशन आता है, उसको कैमरा वार्मर बोलते हैं। वो एक टाइप का बैंडेज होता है जो कि लेंस और कैमरा पे रैपिंग कर दिया जाता है, और उसका एक पावर बैंक रहता है, उससे उसको कनेक्ट होता है, तो आपका कैमरा हीट अप होके रहता है, गर्म रहता है। और आपका वही जैसे लेंस हो गया, लेंस के सामने भी फ्रॉस्टिंग नहीं होता है, ये वो लेंस वही आपका गर्म वही रहता मैं है बोल रहा था सर। उससे। हाँ एक कैमरा नहीं नहीं, वार्मर अभी आता तो है सर। बहुत सारा का सोल्यूशन निकल आया। चलो ठीक है, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। सर ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो स्टार ट्रेल में जो लास्ट पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करना है, वो है आपका एक फुल्ली चार्ज बैटरीज। मैं जैसे प्रदीप सर अभी बोले वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आपको बैटरीज के ऊपर ध्यान रखना है। जब आप शूट स्टार्ट कर रहे हैं तब आप देखना है फुल्ली चार्ज बैटरी हो, और आपका जो कंपोजिशन वाइज जो आप ले रहे हैं कंपोजिशन, अगर पोल स्टार को लेके आप कंपोजिशन बनाते हैं तो आपको ऐसे राउंड कंपोजिशन मिलेगा, उसमें आपका जो ट्रेल है वो उसका प्रोमिनेंसी आएगा। अब डिफरेंट आपके हिसाब से कंपोजिशन ट्राई कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे उसमें कोई रोल नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है बैटरी फुल्ली चार्ज बैटरी हो, और आपका लोकेशन जो है वो डार्क लोकेशन हो। अभी स्क्रीन पे जो फोटो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 26 मिनट्स का एक्सपोजर है। इसमें पोल स्टार आप देख पा रहे हैं, जो ट्री है, ट्री के अराउंड ही पोल स्टार है, जस्ट ट्री के हाफ हाइट में पोल स्टार है। और यहाँ पे अगर ये फोटो 300 मिनट्स तक लेने से ये पूरा फुल सर्कल आ जाता है, उसमें जस्ट थोड़ा सा नीचे का जस्ट एक 20% कट के बाकी फुल सर्कल आ सकता था यहाँ पे। ओके सर आई हैव अ सो, क्वेश्चन। हाँ सर, यस। हाँ मैं अनु बोल रहा हूँ। सर ये जो स्टार्स हैं हाँ उसको कॉमेट की तरह कैसे मतलब आ रहा है?
क्योंकि बाकी स्टार ट्रेल में हम देख रहे हैं कि वो परफेक्टली मतलब उनका विड्थ ट्रेल का एग्जैक्ट है, लेकिन ये प्रीवियस पोस्ट जो था ट्री के साथ हाँ इसमें तो नीचे उसके टेल पार्ट में थोड़ा लाइटर है और उसके हेड साइड में मतलब एक कॉमेट जैसा लुक आ रहा है कि अच्छा, हाँ कॉमेट मूव राइट। कर रहा है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है इस पिक में। अच्छा, ये ये जो पर्टिकुलर फोटो है, हाँ, ये पर्टिकुलर पिक्चर एक्चुअली मल्टीपल फोटोग्राफ से स्टार ट्रेल का मल्टीपल शॉट्स लेके स्टार ट्रेल बनाया गया है। और हाँ इसमें मैं आपको, इसको बोलते हैं कॉमेट ट्रेलिंग। ये जो हाँ कॉमेट की तरफ दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कॉमेट ट्रेलिंग। इसको जब स्टैकिंग करते हैं मल्टीपल एक्सपोजर को, उसका एक मेथड है, उसमें कॉमेट ट्रेल करके मतलब है मेथड। वो उसमें आपको स्टार का जो मूवमेंट है और हेड जो है वो एक न्यूक्लियस की तरह दिखेगा और पीछे का जो है वो टेल की तरह दिखेगा, कॉमेट की हाँ तरह वही। दिखेगा। हाँ, हाँ कौन से तो ये सॉफ्टवेयर मैं सर? आपको करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है इसको। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, जस्ट मैं एक कंपैरिजन फोटोग्राफ दिया हूँ इसमें। इसमें देखिए एक हेवीली लाइट पोल्यूटेड एरिया में राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें स्टार ट्रेल किया हुआ गया है। उसमें स्टार कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल मतलब फेड है, आई मतलब बहुत कम दिखाई दे रहा है। और जो लेफ्ट साइड में जो है ये बहुत ही लेस पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम है, डार्क जोन से लिया गया है। उसमें स्टार का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप इस हिसाब से लोकेशन चूज करिएगा जिसमें आपका नॉर्थ का थोड़ा सा अंदाजा हो, या मतलब फोरग्राउंड में कुछ सब्जेक्ट प्लेस हो सकता है नॉर्थ में और डार्क लोकेशन है, उस हिसाब से आप कॉम्पोजिशन एंड जो लोकेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी के तरफ। वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी में आपका जो पॉसिबल टारगेट्स है वो आपका मिल्की वे है, कॉन्स्टेलेशन है, और मेटियोर्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, ये सब आपका इसमें वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी में आ सकता है। और इसमें जो बहुत ही क्रिएटिव एंगल जो है वो है आपका एस्ट्रो लैंडस्केप। मतलब ऊपर मिल्की वे है, नीचे आप कोई प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर या हेरिटेज साइट इस टाइप का कंपोजिशन बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पिक्चर आएगा। उसके लिए हमें क्या क्या मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपका स्टार ट्रेल तो हम लोग लगभग कोई भी मतलब स्टार्टिंग लेवल कोई सा भी कैमरा से हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स हो। अभी हम लोग देखेंगे कि वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए क्या क्या हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके लिए जो एक डिसेंट वाइड फील्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए ISO 800 और हायर में आपको डिसेंट फोटो आना जरूरी है। जो कैमरा बॉडीज ISO 800 में लेस नॉइस मतलब एक डिसेंट फोटो देता है वो बॉडीज सुटेबल है, बढ़िया, उसमें से आप कर सकते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी। और जो उसका दूसरा मतलब कंसिडरेशन है उसमें आप अगर देखेंगे जो आपका हाईएस्ट ISO वैल्यू है बिना बूस्टेड, जो बेस ISO का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अगर 64 है तो उसका 1/4 1600 तक आप डिसेंटली जा सकते हैं। फर्दर थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन करने से आपको एक डिसेंट फोटोग्राफ मिल जाता है। और सेकेंड थिंग है आपका वाइड फील्ड के लिए जो लेंसेस है, लेंसेस कोई भी आपका वाइड एंगल या वाइड एंगल प्राइम फास्ट लेंसेस इसके लिए सुटेबल है। थर्ड थिंग है आपका, हम लोग देखेंगे कि जो एक्सपोजर ट्रायंगल है उसके लिए हम लोग जो एक्सपोजर यूज करेंगे वाइड फील्ड एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, एक्सपोजर ट्रायंगल को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। जो एक्सपोजर ट्रायंगल का जो इंटीग्रल तीन कंपोनेंट्स हो गया, जो आपका शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर है, उसको इंडिविजुअली हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसमें से फर्स्ट थिंग हम लोग को शटर स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, शटर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका फोकल लेंथ होता है।
जो फोकल लेंथ आप यूज कर रहे हैं फोटोग्राफी के लिए, वो फोकल लेंथ आपका क्रूशियल है मतलब शटर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। वहाँ मतलब शटर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए तीन मतलब एक रूल है जो कि सबसे पॉपुलर माना जाता है, वो उसको कहते हैं रूल ऑफ 500। रूल ऑफ 500, और कुछ लोग उसको रूल ऑफ 400 बोलते हैं, कुछ लोग उसको रूल ऑफ 300 भी बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि आपका कौन सी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में वो लोग शूट कर रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल में आपका स्टार का जो ट्रेल होगा वो फीबल होगा, मिनिमम होगा। साउथ पोल इक्वेटर को मतलब जो सेलेस्टियल इक्वेटर है वहां पे जाएंगे, उससे एक्सट्रीम साउथ को जाएंगे तो वो बढ़ता हुआ जाएगा। सो उसका एक फैक्टर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 500 है। सपोज आप 50 mm लेंस पे शूट कर रहे हैं तो आपको 500 डिवाइडेड बाय 50 mm करना है। जो रिमेनेंट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो आपका होल नंबर लेना है आपको शटर स्पीड के लिए। उससे क्या होता है, आपका स्टार जो ट्रेल है वो आपका अर्थ रोटेशन के अंदर आ जाता है, अर्थ रोटेशन का स्पीड जो है उसके अंदर आ जाता है और आपको स्टार का मोशन फ्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन दिया है कि सपोज आप 24 mm एक लेंस यूज कर रहे हैं, तो उसका जो उसको 500 से मैं डिवाइड करता हूँ तो आपका 20.83 आ गया है। तो आपका मैक्सिमम शटर स्पीड 24 mm लेंथ के लिए है 20 सेकेंड। अच्छा, ये जो 24 mm आप ले रहे हैं ये फुल फ्रेम इक्विवेलेंट है। अगर आप क्रॉप बॉडी यूज कर रहे हैं, क्रॉप सेंसर यूज कर रहे हैं या माइक्रो 3/4 यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका क्रॉप फैक्टर से आप उसको फुल फ्रेम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके फोकल लेंथ को 500 से आप उसको डिवाइड करिएगा। आप अगर पोल स्टार के अराउंड शूट कर रहे हैं तो आप 300 से डिवाइड करने से भी डिसेंट फोटो आ जाएगा। बट आप अगर साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे लॉन्गेस्ट ट्रेल आता है तो आप डिवाइडेड बाय 500 कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 500 करने से कोई भी पॉइंट पे आपको स्टार फ्रीज हो जाएगा। उससे नीचे भी आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। बट जनरली रूल ऑफ 500 अच्छा काम करता है कोई भी रीजन के लिए। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ अपर्चर। अपर्चर सिलेक्शन के लिए कोई बोर्ड नहीं है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। बस एक ही रूल है कि आपको जो वाइडेस्ट अवेलेबल है उसको चूज करना है। अच्छा, जो लेंसेस, कुछ लेंसेस रहते हैं जो कि थोड़ा चीप लेंसेस रहते हैं, उसमें वाइडेस्ट अपर्चर पे क्रोमेटिक एबरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस टाइप के लेंसेस में आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। सपोज आप 50 mm का कोई पुराना 1.8 लेंस यूज कर रहे हैं जिसमें ऑप्टिक्स क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, मतलब ऑप्टिक्स उसमें क्रोमेटिक जो कोट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उस टाइप के लेंसेस में आप पूरा वाइड ओपन यूज नहीं करके एक दो स्टॉप ऊपर आप जा सकते हैं। लाइक आप 2.5 2.8 में उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपका क्रोमेटिक एबरेशन बहुत ही कम आ जाता है। जैसे ये नीचे फोटो है, ये दोनों फोटो में फोकस एक ही जगह पे है, फोकस शार्प है, बट आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का फोटो है इसमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं है, और राइट हैंड साइड का जो फोटो है इसमें आपका क्रोमेटिक एबरेशन है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग लेंस की लेवल पे जितना हो सकता है उतना कंट्रोल करेंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग में भी ये रेक्टिफाई हो सकता है, बट जहां तक पॉसिबल हम लोग लेंस लेवल पे भी इसको ले लेंगे, मतलब फोटो लेने से पहले फोटो में ही इसको करेक्शन कर लेंगे। ओके, देन हम लोग देखेंगे आईएसओ, जो आपका एक्सपोजर ट्रायंगल का थर्ड कॉर्नर है वो है आईएसओ। इसमें इसके लिए क्या हमें लेना है, हम लोग जितना कम आईएसओ यूज करेंगे, जो जितना लेस वैल्यू यूज करेंगे, हमारा फोटो उतना क्लियर आएगा, आईएसओ नॉइस कम आएगा।
बट ये आपका हार्डवेयर जो कैमरा बॉडी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कैमरा बॉडी कितना आईएसओ तक लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है और हैंडल कर सकता है। तो जनरली जो 800 वैल्यू है उससे ऊपर स्टार बहुत ही ब्राइट दिखने लगते हैं। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट 800 से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपका बॉडी के हिसाब से जो भी है आप उस हायर जा सकते हैं। अगर आप हायर आईएसओ यूज कर पाएंगे तो आपको जो शटर स्पीड है वो शॉर्टेस्ट शटर स्पीड हो सकता है, जिससे आपको आपका फोटो और शार्प आएगा। जनरली 800 1600 में अच्छा फोटो आ जाता है। मिल्की वे के लिए भी वो काफी है। ओके तो ये पूरा एक्सपोजर ट्रायंगल है। इसमें हम लोग वाइडेस्ट अपर्चर ले रहे हैं इन व्यू ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन को देखते हुए एक वाइडर अपर्चर हम लोग जो है वो सिलेक्ट किए। शटर स्पीड जो है एज पर रूल ऑफ 500 हमने लिया, और जो थर्ड पॉइंट आईएसओ है वो 800 और 1600 उसको हम लोग अपना कैमरा बॉडी को देखते हुए हम लोग चूज किए। अच्छा, इसमें आप अगर मल्टीपल इमेजेस ले रहे हैं उसको स्टैक कर रहे हैं तो आप इवन हायर आईएसओ को जा सकते हैं, लाइक 6400 12800 कोई भी हायर आईएसओ को जा सकते हैं अगर आपको नॉइस रिडक्शन पोस्ट प्रोसेसिंग में करना है स्टैकिंग करके। ओके, एक्सपोजर में सर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? कंटिन्यू करो। हेलो, कंटिन्यू। एक्सपोजर में कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का एक्सपोजर सेट हो चुका है। अभी हम लोग जस्ट मैं फोकस का फिर से एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे पहले मैं डिस्क्राइब किया था, जो हमारा फोकसिंग मेथड है, जैसे फोकल मार्क इंडिकेटर को लेके हम लोग फोकस करते हैं, या हम लोग डिजिटली जूम करके लाइव व्यू में फोकस करते हैं। बट हमें फोकस रीचेक करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ फोकस फोटो कोई काम का नहीं होता है, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में भी हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोग फोटो का फोकस जो है स्टार के ऊपर वो ठीक है कि नहीं वो चेक करेंगे। वो दोनों वे में चेक करेंगे। एक तो आपको स्क्रीन पे लाइव व्यू स्क्रीन पे चेक करेंगे, और दूसरा है एक सैंपल फोटो लेके एक एक्सपोजर लेके उसको जूम करके चेक करेंगे। दोनों वे से सेटिस्फाइड है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, टोटल जहाँ पे लाइट बहुत ही कम है और आप फोरग्राउंड में कुछ फोरग्राउंड में कोई ट्री है या स्ट्रक्चर है, टेम्पल है, कुछ भी रख के आप कंपोजिशन बना रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है व्यू फाइंडर या लाइव व्यू के थ्रू कुछ, तो उस केस में आपको कंपोजिशन कैसे ट्राई करेंगे, कंपोजिशन बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक जो छोटा सा हिंट है। उसके लिए आप आईएसओ को बूस्ट कर दीजिए पूरा 6400 12800 जितना भी 25000 जितना भी आपका हाईएस्ट है, हाईएस्ट आईएसओ पे चले जाइए। एक लॉन्गर शटर स्पीड ले लीजिए लाइक 30 सेकंड, और एक फोटो लीजिएगा। उससे आपको जो फोटो आने वाला है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। आप उसको कंपोजिशन उससे आप बेटर कंपोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रिगर्स। आपको शटर कैसे एक्चुएट करना है। शटर हम लोग एक्चुएट करने के लिए अगर हाथ से प्रेस करेंगे शटर बटन तो वो डेफिनेटली हैंड का जो शेक है, हैंड का जो वाइब्रेशन है वो कैमरे में आ जाएगा और आपका फोटो सॉफ्ट हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा उसके वाइब्रेशन से। सो आपको कोई भी एक मेथड लेना है जिससे आपको कैमरा को रिमोटली ट्रिगर करना है। उससे वो जो मेथड्स है उसमें से आपका रिमोट है, आईआर रिमोट, जो कि सबसे कॉमन है, जो इंफ्रारेड रिमोट है, इससे आप कर सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेज एस्ट्रो फोटोग्राफी करना है आपको सारे टाइप का, तो एक केबल रिलीज और इंटरवलोमीटर जो है
वो रिकमेंड करूंगा। इससे क्या होगा, आपका इंटरवल भी सेट कर सकते हैं, आपका बल्ब मोड में शटर को प्रेस करके रख सकते हैं आप लॉन्ग टाइम तक, जब तक चाहें आप सब तक बल्ब मोड में शटर को एक्चुएट करके रख सकते हैं। या आप जो कैमरा है आपका, उसका जो सेल्फ टाइमर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। या आप वाईफाई में आपका मोबाइल से कनेक्ट करके कैमरा को एक्चुएट कर सकते हैं, बट इससे आपका बैटरी रिसोर्सेस कंजप्शन होता है मोबाइल ऐप के थ्रू वाईफाई में। तो रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप केबल रिलीज या कोई भी टाइप का रिमोट शटर मैकेनिज्म यूज करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मून फोटोग्राफी। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये एक मून का एसडीआर फोटो है। इसमें मून फोटो, जैसे हमारा एस्ट्रो फोटोग्राफी में कोई भी टाइप का मतलब नाइट स्काई में जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसमें से सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मून होता है। और इसीलिए ये एक टाइप का एस्ट्रो फोटोग्राफी है पूरा, जिसमें आपको फास्टर शटर स्पीड यूज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम लोग जैसे डे टाइम पे कोई लैंडस्केप फोटो ले रहे हैं, उस टाइप का इसमें भी आपको एक फास्टेस्ट शटर स्पीड लेना पड़ेगा। बट मून आपका, जैसे मून का क्लोजअप लेना है तो नॉर्मली इसमें 50 mm से ऊपर आपको कोई भी एक टेलीफोटो लेंस सूटेबल इसमें रहता है। और जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज क्रिसेंट मून है, मतलब इसमें हाफ मून है। तो आपको उसका जो कटस है, माउंटेन्स है, वो क्लियरली दिखेगा, क्योंकि इसमें जब मून हाफ मून रहता है या क्वार्टर मून रहता है, उस टाइम पे आपका लाइटिंग जो है पूरा साइड से रहता है, मतलब साइड लाइटिंग कंडीशन रहता है। उससे आपका जो क्रेटर एंड माउंटेन्स है, ये उसका प्रोफाइल अच्छा आपका आता है। अच्छा, जो मून फोटोग्राफी के लिए एक जो पॉपुलर मेथड है वो है आपका लूनी 11 रूल बोलते हैं इसको। इसमें आप इस रूल में क्या कर सकते हैं कि अपर्चर आपका जो है ये फिक्स्ड रख के आपका जो शटर स्पीड एंड आईएसओ है उसको सिंक करते हुए चलेंगे। सपोज आपका f11 अपर्चर है एंड एक शटर स्पीड रख रहे हैं 1/400, तो आईएसओ भी 400 रखिएगा। वैसे आप स्टार्टिंग जो पॉइंट है आईएसओ 400 एंड शटर स्पीड 1/400, ये अच्छा रहता है। इसके बाद आप एक दो स्टॉप इधर उधर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेंस एंड कैमरा बॉडी। इससे आपको मून का शार्प इमेज आएगा। शटर स्पीड इसलिए हम लोग हायर रखते हैं क्योंकि आपका अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ का खुद का रोटेशन है एंड मून उसका एक्सेस के अराउंड वो खुद भी रोटेट कर रहा है। तो ये जो दोनों का जो रोटेशन है उसको फ्रीज करने के लिए हमें एक हायर शटर स्पीड चाहिए। लोअर आईएसओ इसीलिए क्योंकि मून एक ब्राइटर ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही ज्यादा लाइट है स्टार से, तो इसीलिए हम लोग एक डिसेंट लोअर आईएसओ का यूज कर रहे हैं। अपर्चर आपको थोड़ा सा हायर लेना है क्योंकि बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है। आपको फोकस जो है, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आपको यूनिफॉर्म चाहिए, और थोड़ा सा जो लेंस का स्वीट स्पॉट है अराउंड उसका यूज करिए। सपोज आप कोई भी लेंस यूज कर रहे हैं, मे बी उसका स्वीट स्पॉट अराउंड आपका f8 f9 इस टाइप का रहता है। आप अराउंड f8 f9 f10 कोई सा भी यूज करेंगे तो आपको शार्पेस्ट एंड क्लियर रिजल्ट आएगा मून फोटोग्राफी में। ओके, मून फोटोग्राफी में कुछ क्वेश्चंस है? मून फोटोग्राफी में आगे बढ़ो? नो सर, हाँ ये सर। ओके ओके, थैंक यू। Then we'll come to deep sky objects. डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में आपका जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लगभग सबका जो टारगेट रहता है वो है मिल्की वे का एक क्लियर पिक्चर, ब्राइट पिक्चर।
देन आपका स्टार क्लस्टर्स आता है, और आपका 3D ऑब्जेक्ट्स जो है, जो कॉन्स्टलेशंस है, नेबुलास है, ये सब इसमें डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में आपका आते हैं। तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक फोटोग्राफ है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का लिया हुआ है, और इसमें एक जो ब्राइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो आपका एक प्लैनेट है, जुपिटर। और ये कोरापुट से लिया हुआ है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में फोटोग्राफ। 16 mm फोकल लेंथ है, f4 है, और ISO 1600 है, और 16 सेकेंड्स का एक्सपोजर है ये। इस फोटो में कोई क्वेश्चंस है? सर इसमें जो फोरग्राउंड सब्जेक्ट है उसको लाइट पेंटिंग किया गया है क्या? हाँ, फोरग्राउंड सब्जेक्ट जो है उसको लाइट पेंटिंग किया है, और वो जो कार हेडलाइट है उससे उसको एलिमिनेट किया गया है। अच्छा, ओके। जो और ये फोरग्राउंड सब्जेक्ट है, दो फोटो का स्टैक है या एक ही फोटो में आपने लिया? ये एक्चुअली स्टैकिंग फोटोस है। 3 फोटो है, स्टैक्ड है। एक फोटो में भी ब्राइटनेस आ जाएगा। अच्छा, ओके। सर मेरे क्वेश्चन है। हाँ सर, पिकेनाथ बोलिए। पिकेनाथ बोल रहा हूँ भुवन सर। ओके सर, बोलिए सर। सर ये जो सर अपर्चर मैक्सिमम अपर्चर वाला लेंस चाहिए हाँ एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए, अपर्चर हाँ 3.5 से अपर्चर और बड़ा होना चाहिए। तो ओके। यहाँ ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ अपर्चर f4 रखा है। तो अपर्चर हम भी अभी तो 2-3 स्लाइड के पीछे हम बोले अपर्चर f8 भी रखना चाहिए सिंगल एक्सपोजर के लिए। तो ज्यादा अपर्चर वाइड वाला लेंस का एक्चुअली क्या जरूरत है? हम तो अपर्चर वाइडेस्ट अपर्चर यूज नहीं करते। ये अभी जो फोटो दिखा रहे हैं सर, आप तो हमका तो f4 का तो वाइडेस्ट अपर्चर नहीं है, उसका वाइडेस्ट अपर्चर तो f3.5 भी होगा ना। वो इसीलिए कि क्रोमेटिक एबरेशन को ये करने के लिए। सर आप अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन आपने राइज किया सर। एक्चुअली ये फोटो जो f4 में है वो उससे इससे अच्छा रिजल्ट मिलता अगर ये 2.8 होता या 1.8 होता या 1.4 होने से और भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता और भी अच्छा रिजल्ट मिलता। एक्चुअली ये फोटो जिस लेंस से लिया गया है 1635 f4 लेंस कांस्टेंट अपर्चर, उसमें एक्चुअली फिक्स्ड अपर्चर है f4, उससे नीचे जा नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने f4 में इसको लिया था। बट आपका पॉइंट ठीक है, इससे अगर नीचे हम जा सकते थे 2.8 1.8 या उससे वाइडर, तो रिजल्ट और भी अच्छा आता। थैंक यू सर। ओके सर। सर आउ किसी क्वेश्चन सर? 16 सेकंड जब आमे एटा 16 सेकंड नउचे किछि ट्रेल आसेनी मोशन किछि आसेनी? 16 सेकंड में नहीं आया है। ये मतलब ये कॉम्प्लाई कर रहा है रूल ऑफ 500 को। जैसे हम लोग 500 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो ये अराउंड आ जाता है 20 सेकंड के ऊपर आ जाता है एक्सपोजर। मैं उससे थोड़ा कम करके लिया था क्योंकि लाइट पेंटिंग किया हुआ है फोरग्राउंड को, तो फोटो ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगा, इसीलिए 16 सेकंड करके लिया है। तो ये कंप्लाई कर रहा है रूल ऑफ 500 को। ट्रेल भी इसीलिए नहीं आया है। अच्छा सर, इसको जो फोरग्राउंड में जो बोल रहे लाइट पेंटिंग किए हैं सर, वहाँ पे कुछ फॉल्स लाइट्स वगैरह दिए थे क्या सर? कार का जो हेडलाइट है, हाँ कार का हेडलाइट दिए थे ना। ओके कार सर, ओके का सर। हेडलाइट को जस्ट 1 ऑफ सेकंड करके, हाँ के लिए हाँ ऑन ऑफ किया गया। ओके सर, ओके जस्ट 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ किया गया है, उस उतने में ओके काफी सर। आ जाता है लाइट। ओके राइट सर। ओके, आगे बढ़ो सर। हाँ आगे बढ़िए। सर ये भी एक मिल्की वे का फोटो है
जिसमें ऑलमोस्ट सेम लेंथ सेम सेटिंग सब कुछ है। इसमें भी फोरग्राउंड में कुछ हट है, एक टाइप का एक स्ट्रक्चर है, हट स्ट्रक्चर, और उसके बैकग्राउंड में वर्टिकल में मिल्की वे है ऑलमोस्ट। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, वो जो सामने वाला जो हट है उसके सामने भी वो लाइट के आप दिए हैं या देर मतलब वहां पे एक छोटा सा कुछ लैम्प वगैरह जल रहा था सर? छोटा सा लैंप है सर, उसके अच्छा, उसके ओके। उसके साइड में और एक हट है, तो उसका लैंप हाँ। है जा रहा, उसका लाइट उस पे स्पिल हो रहा है, उसका अच्छा, लाइट हमने जानबूझ के बंद करा दिए थे। ओके सर, ओके। उसका साइड वाला हट से वहां पे लाइट जा रहा है सर। ओके सर, आप आपके पास मतलब आपकी अकॉर्डिंग जो भी लेंसेस है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सा भी डाउट है तो ये तीनों सेटिंग्स में। मिल्की वे इसमें क्या है कि जितना वाइड आप लेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स फोरग्राउंड सब्जेक्ट्स के साथ उसको कंपोज करके, तो आपको उतना अच्छा लगेगा, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये उसका ये फोटो का पर्टिकुलर मैं सीजन बता देता हूँ। ये अक्टूबर में लिया हुआ फोटो है, अक्टूबर के मंथ पे, जब पोस्ट मानसून है, स्काई बहुत ही क्लियर रहता है, हेज भी कम रहता है स्काई में, उस टाइम पे लिया हुआ फोटो है ये। मलय सर, हाँ सर। एक चीज मुझे मतलब मैं जब भी ट्राई किया हूँ तो मेरे को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब जो मेरा लेंस है, प्रोबेबली हाँ जी। मेरे लेंस में ये प्रॉब्लम है, जब मैं f2.8 पे जाता हूँ तो काफी कॉर्नर्स में विनिएटिंग आता है। तो जब वो विनिएटिंग जो आता है वो दैट इज वेरी डार्क इन द कॉर्नर, और उसको जब मैं अगर थोड़ा सा पोस्ट प्रोसेसिंग में ज्यादा बढ़ाता हूँ तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कॉर्नर में आ जाता है आपका काफी नॉइज। ओके। तो आप मतलब नॉर्मली कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा है कि वो जितना आपको कॉम्पोजिशन में अगर आपको 16 mm लेना है और आपके पास ऑप्शन अगर 12 mm तक है तो आप 12 mm में लीजिए और क्रॉप कर लीजिए ताकि विनिएटिंग चला जाए। बट एनी अदर टिप्स व्हिच यू मे बी यूजिंग? हाँ सर, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप कितने mm यूज कर रहे हैं सर? मेरे पास तो वाइड एंगल जो है वो 16 mm है फुल फ्रेम पे। ओके। जो वाइड वाइड अल्ट्रा वाइड लेंसेस होते हैं सर, हाँ, अल्ट्रा वाइड लेंसेस होते हैं, इसमें आपको 2-3 टाइप का प्रॉब्लम जाएगा एस्ट्रो फोटोग्राफी में। एक तो आप फेस कर रहे हैं जो कि विनियटिंग है, वो फेस कर रहे हैं, और दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम आता है अल्ट्रा वाइड एंगल में, वो है उसको बोलते हैं कोमा इफेक्ट। आपका जो लेंसेस है, लेंसेस की एज में जो स्टार है वहां वो पे कोमा आपको कोमा आर्टिफिशियल ट्रेल आएगा, जी, कोमा उसको आता है। बोलते हैं कोमा इफेक्ट। हाँ जी जी, कोमा तो आता है, कॉर्नर में कोमा हाँ आता है। जी, तो ये वो ट्रेल नहीं होता है, जो जब भी आपको फोकस चेक करना होता है सेंटर ऑफ फ्रेम में चेक करेंगे। तो ये दोनों एक स्लाइट मतलब एक 10 to 20% आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जब लेंस करेक्शन अप्लाई करते हैं तो तब चले जाएगा। बट उससे अगर और भी ज्यादा आपको अच्छा एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए आपको, जैसे विनेटिंग जो है उसको हटाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा सर, उसको बोलते हैं मतलब कैलिब्रेशन फ्रेम बोलते हैं। जो आपका एस्ट्रो फोटोग्राफी जो रात को आप यहाँ पे ले रहे हैं, ये आपका लाइट फ्रेम मतलब एडवांस एस्ट्रो फोटोग्राफी में जाएंगे तो इसको बोलेंगे लाइट फ्रेम। ये आप इसमें से आपका स्काई का डाटा कलेक्शन होता है। आपको एक दूसरा टाइप का फोटो लेना पड़ेगा जिसमें आपको आपका जो पर्टिकुलर लेंस है, वो पर्टिकुलर लेंस में आपको एक वाइट कपड़ा लगाना पड़ेगा लेंस के सामने, एक नेचुरल लाइट के तरफ उसको फेस करके एक फोटो लेंगे। मींस आपका एक वाइट कलर का फोटो चाहिए आपका उसी लेंस का, तो उसमें आपका जो विनिएटिंग प्रोफाइल है वो कैप्चर हो जाएगा वो व्हाइट फ्रेम में। जो सेंटर है वो व्हाइट रहेगा, वो साइड में जो जितना विनिएटिंग आता है वो उसमें कैप्चर हो जाएगा। उसको आपको फ्लैट फ्रेम बोलते हैं, उसको विनिएटिंग फ्रेम। वो आपको लगभग 5 से 10 फ्रेम लेना पड़ेगा और उसको एडवांस पोस्ट प्रोसेसिंग में ये लाइट फ्रेम के साथ उसको स्टैक करना पड़ेगा। ओके। तो आपका जो लेंस की वजह से जो विनिएटिंग आ रहा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना सर? मतलब समझ आप गया। अगर उस वहां से नॉइस को मतलब लाइट को एम्पलीफाई कर रहे हैं, लाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो नॉइस आ जाएगा।
बट ये जो लाइट फ्रेम कैलिब्रेशन फ्रेम की तरफ मतलब मेथड यूज करेंगे तो वो वेनिटिंग पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका आएगा नहीं। सर श्रीमंत बोल रहा था सर, एक मेरे को भी एक पूछना था एक चीज सर, जैसे हाँ, एक बोलिए। फुल फ्रेम कैमरा और एक क्रॉप सेंसर कैमरा, ये हाँ दोनों जी। में सर इसमें डिफरेंस आएगा क्या सर बहुत ज्यादा फोटोग्राफी में, एस्ट्रोफोटोग्राफी में? एस्ट्रोफोटोग्राफी में आपको एडवांटेज भी आएगा और डिसएडवांटेज भी आएगा। मतलब फुल फ्रेम में तो डेफिनेटली बेटर पिक्चर आएगा, आईएसओ हैंडलिंग एंड कलर नॉइस बहुत ही कम आएगा। फुल फ्रेम डेफिनेटली क्वालिटी वाइज एडवांटेज ही है एस्ट्रोफोटोग्राफी में। और जैसे डीप स्काई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई स्काई का एक छोटा सा पोर्शन यूज कर रहे हैं आप फोटोग्राफी के लिए, कोई कॉमेट का ले रहे हैं, कोई प्लैनेट का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का विथ हायर फोकल लेंथ में टेलीफो लेंसेस यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप क्रॉप यूज करते हैं तो आपको क्रॉप का एडवांटेज मिल जाएगा, क्रॉप फैक्टर का। वो एक ही एडवांटेज है क्रॉप सेंसर का, जो कि आपको क्रॉप एडवांटेज मिलेगा क्रॉप फैक्टर ओके का। सर, अदरवाइज फुल फ्रेम में ही अच्छा क्वालिटी आएगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन सर? आगे बढ़ते हैं। श्योर सर। ओके सर, ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट में ये एक है, ये ओराइन नेबुला है, रेड ऑफ ओराइन बोलते हैं इसको। ये एक कॉन्स्टलेशन है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टलेशन है स्काई में। आपको ईस्टर्न स्काई में दिखता है ये रात को। इसको ओडिया में हमारा बोलते हैं कालो पुरुषो बोलते हैं, मतलब ये एक सोल्जर की तरह दिखता है स्काई में। उसका बेल्ट के पास में ये एक नेबुला है। ये एक इजी टारगेट है डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में, जो कि कोई भी अराउंड 200-300 mm लेंस में इसको ट्राई कर सकते हैं, उससे हायर फोकल लेंथ में भी ट्राई कर सकते हैं। सर ये कोपट रोज ये सर, easy- ऐसा सर ये कौन से साइड में है? ये सर प्रॉपर ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है सर। मतलब जो इक्वेटोरियल है, अपना सेलेस्टियल इक्वेटर है, उसके अलोंग ये चलता है। मतलब जैसे जहां पे आपका मून राइज होता है और सनसेट होता है, उसके साथ ये चलेगा। राइट सर, ओके सर। ईस्ट से राइज होगा और वेस्ट में ये सेट होगा सर। मतलब सर इसमें जो आपका स्पेसिफिकेशन आपने जो लिखा है एक्टिव डेटा, वो 2 सेकंड्स का है, 100 एक्सपोजर्स। तो ये आपने स्टार ट्रैकर से लिया था या आपने ऐसे ही इसको स्टैक कर लिए हैं? ये मतलब हैंड स्टैकिंग हुआ है सर, मतलब मैनुअल स्टैकिंग हुआ है। अच्छा, वो ट्रैकर यूज नहीं हुआ है, मैं इसीलिए इसको हाँ सर 100 एक्सपोजर को आपने स्टैक किया, बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए मैं इसको फोटो को इसमें रखा, क्योंकि ये मैनुअली किया जा सकता है। हाँ, और सर 2 सेकंड्स में यही देख रहे हैं सर, 2 सेकंड्स, ओनली 2 सेकंड्स, ओनली 2 सेकंड्स है सर। 300 mm हम लोग यूज कर रहे हैं, तो रूल ऑफ 500 के हिसाब से ये नहीं हो रहा है। 2 सेकंड्स हो गया। यस सर, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, वो समझ में आ गया। हाँ तो ये जो नेबुला है सर, ये थोड़ा सा मैग्निफिकेशन पे दिख जाता है। मतलब आपको 150 mm के बाद आप इसको मतलब व्यू फाइंडर में देख सकते हैं। ये जो कॉन्स्टलेशन है, सॉरी ये जो नेबुला है, इसको आप आपका लाइव व्यू में, व्यू फाइंडर में इजीली आप देख सकते हैं, तो इसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सर ये ट्रेसेबल होता है सर, ये बेस्ट ट्रेसेबल टाइम कब है सर? अक्टूबर? ये सर ये सर ये समर का फोटो है, ये मे बी मार्च का फोटो है सर। ये सर कहाँ पे था ये वाला? मलय जी, हाँ जी, इसको सिंगल एक्सपोजर में नहीं ले सकते? अच्छा नहीं आएगा? सर आपको 2 सेकंड में कितना एक्सपोजर मिलेगा सर? मतलब जैसे 300 mm पे ये इतना है और वो भी क्रॉप्ड है हेवीली। हाँ, तो आपको बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे, सपोज 5 सेकंड करेंगे, 10 सेकंड करेंगे, तो ट्रेल आ जाएगा, शार्प नहीं रहेगा। फिर ये तो आपने सर नॉर्मल लेंस में लिया है। बहुत लोगों को मैं इंटरनेट में देखता हूँ, दे यूज, मैं बोल रहा हूँ सर आपने तो नॉर्मल 300 mm लेंस पे लिया है,
बहुत लोगों को हाँ देखता सर। हूँ इंटरनेट पे, दे यूज दिस टेलीस्कोप्स, वो टेलीस्कोप हाँ, से लेते हैं इस तरह के नेबुलास और डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को हमेशा। ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है सर, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इजीली फाइंड हो सकता है ये। टेलीस्कोप से आप 50 mm से भी ले सकते हैं सर इसको, अच्छा, इवन तो 50 mm से भी ये ओराइन काफी नेबुला आ जाता है। ये काफी बड़ा है मतलब। हाँ, ये लगभग मतलब 50% क्रॉप है, 300 mm का फोटो से 50% क्रॉप है ये। अच्छा, आप इसको कोई सा भी मतलब 100 400 कोई भी जूम लेंस से ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आप अगर एक 30 फ्रेम्स भी ले लेते हैं, अच्छा गुड फ्रेम 30 फ्रेम्स आपका फोटो मिल जाता है। जो आपका व्यू फाइंडर है, व्यू फाइंड जो फ्रेम है, फ्रेम का जो जैसे हम रूल ऑफ थर्ड में जो दो ग्रिड लाइन है आपका लेफ्ट एंड राइट, उसके अंदर रख के आप 30-40 फ्रेम्स ले लीजिए, आ जाएगा। स्टैकिंग करने से इतना अच्छा, ब्राइटनेस आ जाएगा कोई भी फोटो। सर ओके, ये आगे बढ़ते हैं मैनुअल सर। ट्रैकिंग मतलब वो कैसे किया आपने? मैनुअल ट्रैकिंग मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको फ्रेम में रखना। ओके, अच्छा अच्छा, बस उतना ही। अच्छा अच्छा। हाँ, ट्रैकिंग मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको फ्रेम में रखना, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप एक 30% का कंपेंसेशन रखिए और फ्रेम की अंदर रखिए उसको। अच्छा, अगर नए नए शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा वाइड मतलब 200 या 100 mm में करके देख सकते हैं ना, जब तक परफेक्टली नॉलेज आ जाएगा उसको थोड़ा जूम करके ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ, कैसे मूव हो ये रहा है, क्या हो रहा है। ये एक्चुअली ये नेबुला आप नेकेड आई से क्लियरली देख सकते हैं, इसीलिए अच्छा आप अच्छा कोई दिक्कत नहीं जाएगा ट्रैकिंग करने अच्छा में। अच्छा। अच्छा, मतलब सर और एक चीज सर ये था। वही डार्क फ्रेम लाइट फ्रेम ये सब होता है ना? हाँ जी, हेलो। हाँ, ये हाँ, कैलिब्रेशन फ्रेम सर, ये लाइट फ्रेम डार्क हाँ, फ्रेम यही सब होता है ना? हाँ जी, हाँ। कैलिब्रेशन फ्रेम्स मतलब सर इसमें क्या होता है कि हमारा जो 2-3 टाइप की जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स में, और लेंस का जो प्रॉब्लम्स है कैलिब्रेशन फ्रेम में एड्रेस किया जाता है। तो कैलिब्रेशन फ्रेम में जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका डार्क फ्रेम। डार्क फ्रेम मतलब उसमें क्या होता है, नॉइस को एड्रेसिंग किया जाता है। जो कैमरा नॉइस प्रोड्यूस करता है जब आपका लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं, कैमरा सेंसर हीट अप होता है। कैमरा सेंसर जब लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं हीट अप होता है और हाई आईएसओ में हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो डार्क फ्रेम है हाँ हाँ। ये उसको एड्रेस करता है। डार्क फ्रेम को लिया कैसे जाता है वो बता देता हूँ। आपका जो भी सेटिंग से आप लाइट फ्रेम ले रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे लाइट फ्रेम ले रहे हैं, जहाँ पे ऑन लोकेशन जिस जगह से आप ले रहे हैं उस जगह पे आपको आपका लेंसकेप लगा देना है। वही सेटिंग पे आपका लाइट फ्रेम मतलब जो भी डेटा है कैप्चर करने के बाद लेंसकेप लगा देना है। लेंसकेप को प्लेस कर देना है लेंस पे, और एक 10-20 फ्रेम ले लेना है। वो आपका डार्क फ्रेम हाँ हाँ होता है। हाँ, ठीक। वो नॉइस अच्छा रिडक्शन अच्छा। के लिए यूज किया जाता है आई थिंक सर। मतलब सर इसीलिए वो जो हम लोग जब इन कैमरा एक होता है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन, तो हमारा जैसे ही हाँ, शटर बंद होता है उसके बाद कैमरा एक फिर से एक शॉट लेता है, एक ब्लैक शॉट लेता है, उसको बाद में मर्ज करता है। मतलब जब इन कैमरा जो लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन करते हैं हम लोग, एक हाँ खत्म सर, होता है, हाँ उसमें सेम आई होता थिंक है। सेम मेथोडोलॉजी कैमरा यूज करता है शायद। सेम सेम मेथड यूज करता है। और उसमें आपको प्रॉब्लम ये जाएगा, आप जितने ड्यूरेशन का स्टटर होगा आपका, सपोज 30 सेकंड के लिए आपका 30 सेकंड का एक्सपोजर है। अगर इन कैमरा नॉइस रिडक्शन आपने ऑन कर दिए हैं गलती से भी एस्ट्रो फोटोग्राफी में, तो और लेट 30 हो सेकंड आपको नॉइस रिडक्शन में चले जाएगा, बहुत लेट हो तो जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी लगेगा उसके बाद। तो आपका प्रॉब्लम होगा। मतलब जैसे स्टार ट्रेल टाइप का फोटोग्राफी हो गया, जी, तो ट्रेल आपका 30 सेकंड बहुत का आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा। तो अच्छा, इसके उसके लिए हमको उसको अवॉइड करना है। आपका हाँ, इन कैमरा नॉइस रिडक्शन जो है हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन, उसको उसको ऑफ बंद कर कर देना। देना है उसको हमेशा। अच्छा, और एक चीज सर, जैसे हाँ आपने जी, यहाँ पे 100 एक्सपोजर लिया है, तो आपने हाँ बोला जी, जैसे रूल ऑफ थर्ड का जो ग्रिड है उसके बीच में आपने नेबुला को रखा और देन यू हैव टेकन द शॉट।
तो बाय द हाँ टाइम आपका जो शॉट्स एंड हुए होंगे 60-70 हाँ तब तक आई थिंक ग्रिड से तो वो मूव कर गया होगा आपको जो आपको क्या करना है सर कि 30-20 फ्रेम में मूव करना है, कैमरा को रीएडजस्ट अच्छा करना है। ओके ओके तो 20-20 सेकंड में ये तो फिर से एक बार एडजस्ट करके बीच में लाना पड़ेगा। हाँ जी, ये क्या होता है सर कि जब कोई भी आप स्टैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जो स्टार्स आपका दिख रहा है उसका वो जियोमेट्रिक ट्रायंगल बना देता है ओके फोटोज में। मतलब इमेजिनरी जियोमेट्रिक ट्रायंगल्स बना देता है, फिर दूसरा फोटो को उसके ऊपर प्लेस करता है वो। तो अच्छा आपको सॉफ्टवेयर तो ट्रैकिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, इधर उधर थोड़ा सा भी होता है तो इसके 20-20 फ्रेम में आपको रीएडजस्ट करना है, बाहर चले जाएगा इनसे। अंडरस्टूड बहुत बहुत ही स्पीड भागेगा वो। 300 mm में आपको लगभग 2 मिनट में वो फ्रेम से आउट हो जाएगा। 2 मिनट में डेफिनेटली पूरा व्यू फाइंडर से आपको बाहर चले जाएगा वो। डेफिनेटली और तो 300 mm में 2 सेकंड्स का शॉट लेने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा स्टेडी लैपटॉप स्टेडी ट्राइपॉड चाहिए डेफिनेटली। हाँ, स्टडी स्टडी ट्राइपॉड चाहिए। पूरा स्टडी ट्राइपॉड नहीं होने से प्रॉब्लम होगा आपका, जो शटर स्लैमिंग हो रहा है उसमें से भी शार्पनेस चले जाएगा। ये आप जैसे मान लीजिए मिररलेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डीएसएलआर में करते हैं तो क्या मिरर अप करके करते हैं फ्रंट कट एंड शटर? आप मिरर अप करने से होगा, क्वाइट मोड में ले जाने से भी होगा आपका। अच्छा बट ट्राइपॉड अगर अच्छा है तो वो एडजस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो कैलिब्रेशन फ्रेम में सर इम्पोर्टेंट जो है वो आपका डार्क फ्रेम्स है और आपका बायस फ्रेम्स। बायस फ्रेम्स मींस सर कि उसमें क्या किया जाता है कि जस्ट वही फ्रेम को सबसे हाईएस्ट शटर स्पीड में लिया जाता है। लाइक आपकी कैमरा में अगर 1/4000 है या 1/8000 है, तो उतना सब मतलब हाईएस्ट शटर स्पीड में वो फ्रेम को रिपीट किया जाता है, मतलब फोटो लिया जाता है। उससे ये होता है कि कैमरा जो डेटा ट्रांसफर में जो एरर्स करता है, मतलब सेंसर टू इमेज जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक लॉस हो रहा है, वो एक 10-15 फ्रेम से एवरेज हो जाता है, निकल जाता है कि कहाँ पे क्या डेटा का ट्रांसफर में प्रॉब्लम हुआ है, जो मतलब सिग्नल नॉइस बोलते हैं जिसको, वो रेक्टिफाई हो जाता है। तो वो बायस फ्रेम होता है। और जैसे आप फेस कर रहे हैं विनियटिंग का प्रॉब्लम अल्ट्रा वाइड में, और विनियटिंग के लिए आपको फ्लैट फ्रेम लेना पड़ेगा। तो सर परेश यार, मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे। हाँ बोलिए ना। सर ये आपने कहाँ पे लिया है और कितना उस वक्त टाइम क्या था सर? ये एक्चुअली मून फेज जो है ना, मून भी स्काई में था, जी इस सर। स्काई में मून था। ये थर्ड क्वार्टर मून में लिया हुआ है और ये 7:30 to 8:30 के बीच में लिया है इवनिंग में। जी सर, जगह कौन सा था? एट विच प्लेस यू हैव टेकन दिस सर? ओडिशा, कोरापुट। कोरापुट सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप इसको, ये ब्राइटर सब्जेक्ट है, आप इसको थोड़ा सा भी आप येलो जोन से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। कोई भी सिटी से आप जस्ट मतलब सर यही ट्राई करना 10 है अभी किलोमीटर। सर, मतलब सर यही ट्राई करना है, बढ़िया चीज आप दिखाए। हाँ, आप इसको इवन भुवनेश्वर से भी एक 10 किलोमीटर बाहर जाके ट्राई कर सकते हैं, ये इजी टारगेट है, बढ़िया सर इसी सब्जेक्ट को है, करना है अभी। बिल्कुल ट्राई करिए। बट सर ये बढ़िया स्मोक आएगा। वगैरह नहीं रहना है ना सर इसमें? ये एक्चुअली आपको जैसे कोई मतलब हाँ स्मोक फ्री रहना है ना सर ये वाला? सर क्या होता है कि ये आपको, जैसे मैं बोला आपको, ये सेलेस्टियल इक्वेटर के साथ मूव करता है, मीन्स आपको 8-9 बजे तक ये आपका हेड ऑन मिलेगा, ऊपर मिलेगा जनित पे, मतलब आपके सर के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो होराइजन से अगर ऊपर आ जाते हैं तो आपको पोल्यूशन कम मिलता है, होराइजन की अलोंग जाएंगे तो आपको पोल्यूशन ज्यादा मिलेगा। तो इसको 7-8 बजे तक ये ऊपर आ जाएगा 70-80 डिग्री में, आप आराम से लीजिए, तब पोल्यूशन बहुत कम आएगा, स्मोक वोक नहीं आएगा। ठीक है सर।
यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, ये रिसेंटली लिया हुआ फोटो है, Neowise Comet. नियोवाइज का है। नियोवाइज जो C2020F3 है। और ये फोटो सर, ये फर्स्ट साइटिंग है उड़ीसा से। फोटो जो कैप्चर किया हुआ है, ये फर्स्ट फोटोग्राफ है। 17 जुलाई को लिया हुआ है सर। ये 16 mm वाइड लेंस में लिया है, 2.8 ISO 3200 20 सेकंड का एक्सपोजर है। और जो रॉक देख रहे हैं फॉर्मेशन सामने, उसको मोबाइल लाइट से लाइट पेंटिंग गया है सर। मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, उससे उसको लाइट पेंटिंग किया हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इट्स एन एक्सीलेंट फोटो सर। थैंक यू सर। सर ऐसे तो सारे फोटो बहुत अच्छे हैं, बट ये भी कुछ जबरदस्त है। द स्काई मतलब बहुत अच्छा है। सर आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर, ये नियोवाइज कॉमेट जो है, उसका क्लोज प्रोफाइल फोटो है सर। विथ उसका डस्ट टेल भी दिखाई दे रहा है इसमें, और उसका आयन टेल भी दिखाई दे रहा है। जो ब्लू कलर का एक स्ट्रेट टेल जो दिख पा रहे हैं, ये उसका आयन टेल है, और ये है डस्ट टेल है। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, हेड है वो। ये 50 mm लेंस में लिया है, 2.8 अपर्चर, ISO 3200, 10 सेकंड एक्सपोजर, 70 लाइट फ्रेम्स, और बाकी 20 कैलिब्रेशन फ्रेम्स है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। ये भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स है। इसमें जो सप्तर्षि मंडल है, उर्सा मेजर है, उसको वो क्लिक किया हूँ। बस मैं उसको मार्किंग कर दिया हूँ, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे। आपको जो बॉटम में जो सिंगल स्टार दिख रहा है, वो आपका पोल स्टार है। स्टार ट्रेल जब आप करेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अराउंड आपका सारे स्टार का रोटेशन मिलेगा। बट सर ये सिंगल मतलब जो ये क्या सिंगल है क्या सर? सिंगल शॉट है क्या वो? हाँ, सिंगल शॉट है सर। ये 2.8 में है, 50 mm में है, बहुत ही ब्राइट शॉट ओनली है। 10 सेकंड्स में सर, ओनली 10 सेकंड्स में ऐसा लाइन्स आ जाता है सर? सर लाइंस जो है वो डाला हुआ है कॉन्स्टेलेशन को हाईलाइट करने के लिए। ओके ओके। जो कॉन्स्टेलेशन है वो उसको दिखाने के लिए मैं लाइंस डाला हूँ। मतलब आप पोलस्टार कैसे फाइंड करेंगे, और जो ग्रेट बियर है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए। ओके सर, इसमें आप पोस्ट प्रोसेसिंग में भी काम किए हैं सर? हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग में मैं काम किया हूँ उसमें। ओके सर, और इसमें लाइट पेंटिंग्स वगैरह नहीं है? जैसे फोरग्राउंड में लाइट पेंटिंग्स वगैरह नहीं है सर कुछ भी? नहीं है सर, इसमें लाइट पेंटिंग नहीं है। बट देखिए, आपका फ्रेम का राइट हैंड साइड को बॉटम में है, तो नीचे का फोरग्राउंड है वो एक सिलआउट टाइप का कॉन्ट्रास्ट दे रहा है उसमें, तो जरूरत नहीं पड़ा। अगर आपका होराइजन बहुत मतलब फेंट है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। लाइट पेंटिंग जरूरी नहीं है सर, कंपोजिशन जैसे आपको अच्छा लगे। ओके सर। उसके बाद सर जो लास्ट पार्ट है वो है आपका प्लैनेट फोटोग्राफी। और प्लैनेट फोटोग्राफी सर मतलब एस्ट्रो फोटोग्राफी नॉर्मल DSLR के साथ करना बहुत मुश्किल है, और हेवी पोस्ट प्रोसेसिंग का जरूरत पड़ती है उसमें। तो जैसे मिनिमम आपको 4000 से 5000 mm का फोकल लेंथ चाहिए। तो मतलब वाइल्ड लाइफ लेंस से भी ज्यादा बड़ा लेंस चाहिए। तो ये सर मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ इजी टारगेट जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, बट इतना अच्छा रिजल्ट
नहीं आएगा शॉर्टर फोकल लेंथ में 600 mm तक 800 mm तक। ओके, तो अभी सर बात करते हैं कुछ जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग टिप्स, और जो उसका सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जो जैसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि स्टार ट्रेल 2 टाइप का होता है। एक हो गया आपका सिंगल एक्सपोजर, दूसरा हो गया आपका मल्टीपल एक्सपोजर। और सिंगल एक्सपोजर तो ठीक है, उसमें बैटरी ड्रेनेज ज्यादा है, बैटरी चेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपका नॉइस का प्रॉब्लम है, और फिर जो लो एंड बॉडीज है उसमें सेंसर ज्यादा हीट अप होता है, हॉट पिक्सल्स और नॉइस पूरा फ्रेम में आ जाता है। तो इसके लिए हमें मल्टीपल एक्सपोजर लेके उसको स्टैक करना अच्छा मतलब वो एक अच्छा अल्टरनेटिव है। आप कुछ चीजें आपकी फाइनली आउटपुट आपका अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो फ्रीवेयर है, उससे मैं आपको इसको कैसे स्टैकिंग करना है वो आपको दिखाऊंगा। स्टार ट्रेल के लिए आपको एक्सपोजर कैसे बनाना है, क्या सेटिंग रखना है, उसमें सब क्लियर है ना सर? हाँ सर। Yes, sir. मलय हाँ सर। आमे गोटे काम करबा जो पोस्ट प्रोसेसिंग पार्ट टा हम गोटे Okay. गोटे सेपरेट सेशन रे रखिया पर कंप्लीटली पोस्ट प्रोसेसिंग टा। वर्तमान Okay. आमे टिके चाहिबा तमरो इमेजेस गुरा को केतरा खाली इमेजेस देखबा विदाउट स्लाइड सहित ताकू टिके बेटर होबो। हाँ सर बेटा टाइम लिमिटेशन अछि 130 तो पाखा पाखी आउ 10-15 मिनिट हम एक्स्ट्रा करि परिबा। तो पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम Okay. आउट सेशन रखिया। सर नेक्स्ट संडे। मले सर एक्चुअली मतलब टाइम से भी ज्यादा the kind of in-depth knowledge which you have, we don't want to rush and finish it like such an important part of this astrophotography. तो इसके लिए और एक सेशन चाहिए होगा। ओके ओके सर, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ फोटोस देखेंगे खाली। फोटोस में सर आपको कोई भी किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। ये देवमाली है कोरापुट का हिल रे मतलब माउंटेन रेंज देवमाली, उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है, उसका एक नाइट व्यू है सर। ये भी 16 mm पे लिया है, ISO 1600 और 20 सेकंड का एक्सपोजर है। पोस्ट प्रोसेसिंग हुआ है फोटोशॉप एंड कैमरा रॉ में। ओके, बहुत बढ़िया। ये भी देवमाली का है, ये व्यू पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम सेटिंग है, बस जो व्यू पॉइंट है उसको मोबाइल लाइट से लाइट पेंटिंग किया हुआ है। ये एक लैंडस्केप है, एक ब्रिज है, रोडवे ब्रिज, जिसके ऊपर से व्हीकल्स पास कर रहे हैं, जिसका हेड लाइट का फ्लेयर भी हो रहा है राइट हैंड साइड से, और ब्रिज के ऊपर उसका जो ट्रेल हेड और टेल लैम्प का जो ट्रेल है वो क्लियरली विजिबल है। नीचे पानी जा रहा है आपका, और ये इस स्काई है, इस साइड का स्काई है। ये एक फोटोग्राफ है, ये क्रॉप बॉडी में 18 mm लेंस में क्विक लेंस लिया हुआ है। इसमें 3.5 है, सॉरी इसमें टाइपमेटिक एरर है, 3.8 लिखा हुआ है, ये 3.5 में लिया हुआ है लेंस है, फोटो है, ISO 1600 और 25 सेकंड्स का एक्सपोजर है ये। बस मैं इतना फोटोस इसमें ऐड किया था। आप जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं।
सर डाउट तो बहुत सारा रह गया, बहुत अच्छा सेशन था आपका सर। एक बार हम लोग को प्रैक्टिकल सेशन चाहिए, हम लोग खाली वाइल्ड लाइफ के पीछे भागता है, बट प्रैक्टिकल सेशन एक बार चाहिए सर। इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू सर। जो भी जैसे भी आज जो भी आप सीखे यहाँ से, तो कुछ फोटो लेने की कोशिश करिएगा, कुछ फोटो लेने की कोशिश करिएगा। एस्ट्रो फोटोग्राफ में क्या होता है, एस्ट्रो फोटोग्राफी में आपका इमेज डाटा कलेक्शन, इमेज मेकिंग जितना इम्पोर्टेंट है, इक्वली पोस्ट प्रोसेसिंग भी जरूरत है, उसमें जरूरी है, क्रिटिकल है पोस्ट प्रोसेसिंग। तो आप कुछ डाटा कलेक्शन करिएगा, कुछ इमेजेस अपने पास क्रिएट करिएगा, फिर दूसरे दिन का भी मतलब और एक का भी उसका जो कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, उसका ल्यूमिनोसिटी कैसे बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करना, वो डिस्कशन करेंगे। और इसमें एक्सपोजर, लेंसेस या टिप्स, टेक्निक्स, जिसमें कोई भी डाउट हो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। सर ये जो नॉइज क्रिएट होता है वो सिर्फ कैमरा बॉडी पे डिपेंड होता है या फिर लेंस पे भी कुछ डिपेंड होता है? अगर हम अच्छे लेंस यूज करेंगे तो लेस नॉइज आएगा, ऐसा कुछ होता है या फिर सिर्फ सेंसर पे ही डिपेंड करता है बॉडी का? नॉइस जो जनरेट होता है फोटो में, जो नॉइस जनरेट होता है वो नॉइस दो टाइप का होता है।